So open source is a computer software where the source could distribute it under an open source license that always allows anyone to study, to operate, change, improve, and distribute the program. So now, what is GSOC? GSOC stands for Google Summer of Code. It is an online international program that is designed to encourage young contributors that contribute to open source development. Yeah. So what do you get to do in GSOC? You get to work on open source software and build something useful. You also get help from mentors, and the most important part, you get paid. Another thing I like to add, open source softwares are also developed on sites like GitHub. So you guys can obviously sign up for free on GitHub and you can use your Hamilton mail ID to register on GitHub, right? And GSOC is an annual program, so it happens once in a year. So now since we have all three of our speakers here, I'd like to talk about a little bit of history that Alias has with GSOC. So this represents the last 4 years our contributors to GSOC. So in 2017 we had 2 students who got accepted. In 2018 that increased the number of mentors, as in once you participate, the very next year you can come in as a mentor again. You help young contributors and guide them as to how they can be useful and how they can contribute, right? Then 2019 we had 8 students who got accepted and 7 students as got accepted as mentors. In 2020 we had 11 students who got accepted and 8 were accepted as mentors, right? So now with the huge round of applause, can I welcome our 3 speakers? So our first speaker is Mohit Bhatt, right? So the speakers will introduce themselves just shortly. Our second speaker for the day is Nishant. And our third and final speaker for the day is Pankaj, right? So please give just a short introduction about yourself. Yeah, sure. So I'm Mohit, and I have been into in the past I have been into the open source stuff, like in multiple programs, and especially the Google Summer of Code. I have been the part of Summer of Bitcoin ETH India Fellow, and I have been the project admin at last year's GSOC 2022 for ScoreLab organization. This year also I will be project admin as well, so we will be launching 2-3 more projects in the GSOC category. So yeah, I actually love open source. It has given a lot of things to me, and I think you all should also go into depth of open source and try to learn and grab every opportunity that it provides. Yeah. That is great. So Nishant, please. Hello, my name is Nishant Singhal. I am a third year student at I cleared the GSOC in second year, so that's the point. I am the GSOC 2022 contributor at CC Extracted Development. There is a chance that I can be the mentor this year also, there in the Flutter side. So open source has given me a lot of recognitions and many things, networking to other people. I have a contact with my mentors who are in Meta and Goldman Sachs. My mentors are in Meta and Goldman Sachs. So GSOC is a very good thing in you can network with very good people and improve your skills gradually in that. Pankaj. Yeah, so I am Pankaj, and so I contributed to GSOC last year. So I started contributing to open source in 2021, I guess, and I think I have learned a lot of things by contributing to open source, because even if you separate out GSOC from my experience, then I have worked at multiple projects at the company that I did my GSOC from, and it has given me a lot of experience and a lot of confidence to excel in the future things that I do. I have it has given me opportunities to work with product managers from Google. Like the product manager I worked with is the project manager from Google. So, and then there are multiple people from Google and Goldman Sachs, as he mentioned, right? So it gives you a lot of opportunities to work with different kind of people of different domains. I mean, if you work at open source, it's not only about coding and stuff, because there are a lot of kind of people involved in it. So you have also to work with the design team and
the marketing team who markets the product out. So there is a lot of things to learn about it. So now since you've got an introduction out of the way, I think we should just get right into the questions we have for you. So, it's a very generic term as to why GSOC? Like, all three of you mentioned there are various open source opportunities out there, but why GSOC? So, we'll go in the same order that we had the introductions. So, yeah. Okay, so why GSOC? I think if you are like sitting here, you know why GSOC. Okay, what student needs. One is like paisa. That is not for like GSOC is not only about money, but yeah, another thing is like you get to learn a lot of things in a very short period of time. Okay, so like if you are like a student and you are like maybe learning React, Node.js or anything, so you are like to a level of maybe when you have done a course or you have done something, you are a level of like maybe intermediate or like at low. You don't know how like the system at scales work. Okay, so GSOC is an opportunity for students. So if you go into like any of the organization, you will see there is a lot of code base there. So you have to like understand that code base and then work on top of it. So in that 2-3 months, if you are like focusing on GSOC, you will be able to like upskill yourself in like learning things, in like executing things, and your knowledge will be like at a good stage. And of course, like with GSOC comes a lot of benefits. So with any open source, so company will reach out to you automatically. Okay, so you will get, once you have done GSOC, companies will reach out to you. They know like you have done some code on like a lot of good code base, and of course you get stipend. So that is one monetary benefit that you get. And apart from that, like yeah, so a lot of opportunities, learnings, that is the part of GSOC. So I think you all should do, if you like pass it or not, but in those 1 or 2 months when you are preparing for it, you will learn a lot of things out of it. So yeah, that's why GSOC. I would like to add like पैसा अरे गूगल का थप्पा सबसे सेकंड बात like you get the chance like you have a title on GSOC preferred candidate in your on all the Google applications, like I got that thing. So and also open source you can like I'm new to the open source. Before GSOC I have done 1 to 2 contributions and not in my organization. I simply do their tasks in the project task and selected in that, and through that I got to know about the open source and more new technologies. Like I am in Flutter, but know about the basics of Flutter, not the state management and the other things. So I got to know about that things in there. Also meet new people is the main benefit. Like if you have, there is many community talks between these sessions, like GSOC community talks. There you get to know other projects also, and also through that you can like I am this contribution in this organization, but if next year I want to the change, they also help us preparing that organizations also. So GSOC is like you get the complete package, open source, networking, code base, you can the thing. So I really recommend it about the GSOC. Like preparing for GSOC also give you networking base. Like you talk to the mentors for like how to do the projects and also how to make a proposal. Like I talk to my mentors and reach out to them before giving the proposal to the GSOC, like checking them. So that's my take about the GSOC. Yeah, so I mean, a lot of things have already been mentioned, but I think one important takeaway from GSOC is like how you talk to people, right? That is a very important skill, and I think most of us lack that, right? Because in India, it's not really easy to mail somebody and ask about different things, and GSOC is all about communication. Because if you can't communicate with your mentor, if you can't communicate with your GSOC admins, then it's highly probable that your project is not going to be completed. So, and there have been previous cases where when the people are not in communication with the mentors, their project has not been completed. There have been previous cases of this as well.
And this is, I think this is the biggest skill, because when you want to, let's say, when you want to apply off campus, and you want to, send mails to different companies, different HRs of companies, it gives you a kind of confidence that you're, because it's something that you have already learned, right, through GSOC, and I think it's very helpful in that. Yeah, that's all. Okay. So I guess with this we can definitely see that GSOC is an ocean of opportunities. It is extremely good of exposure in terms of communication, in terms of knowledge, in terms of connecting with people. I think that is what we all Yes, agree. yeah. Yeah. All right. So we talked about great exposure and everything. But how does one get started? Like I mean, if I am a common guy who's studying in second year, I don't know anything about open source, or I don't know anything about collaboration. So how do I get started? Pankaj? Yeah. So I think, so GSOC all boils down to how you get that first contribution in. Because I think that is what is stopping most of the students to, participate in it. Right. And for me, it was the same, because I didn't have any, mentors to ask to कि उसने करा हुआ है, मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक भैया ने करा हुआ है, तो उनसे मैं पूछ लूँ कि कैसे अप्रोच करते हैं, राइट. सो that thing was not there. So the first year that I wanted to apply to GSOC, it was like scrolling down the GSOC page for companies and all, कि कौन सी कंपनी में मेरा मतलब टेक स्टैक बैठा है कि उसके साथ मैं करूँगा, राइट. देन आई थिंक देयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि जो तुम कंपनी चूज़ करते हो, राइट, इट हैज़ टू बी अ कंपनी की विच इज़ एक्टिव. Because before GSOC, I mailed to 3 or 4 companies who have previously participated in GSOC, but there was I didn't even get a reply for 4 months from that company. So but the OPI that I did my GSOC from, I got a reply after 2 days. So there are a lot of companies that are part of GSOC and are really active. So you have to target those active companies first. Then the second step is the kind of issues that they have in their GitHub pages. So it all secondly, it's all about the right, it's all about like picking the right issue to do. Because what happens is like you pick up a issue that is not really easy, and then you face troubles with getting your first contribution in. So I think picking up the right issue and going on with it, because what happens is sometimes your first PR takes a lot of time to get in. Like PR is a pull request, right? And so your first pull request, that is the first contribution, takes a lot of time, because they don't really know you, so they are not going to trust your code, right? So they have to get it validated. You have to get it validated from the people of the organization. So it takes a lot of time. I mean, it could take you 2 to 3 weeks as well, or maybe a month if you are. If the process is slow. So you have to stick with it and just get your first contribution in, and that's all it takes. I mean, after that you will get confidence to get more contributions in, and then you realize that GSOC is not really that hard. Yeah, so basically I will tell you like I think he has covered a few things. So like I will just tell you how you have to get started, like what's the exact roadmap. The first thing is like I have seen like students who are like in 12th class, they are like messaging me, I want to crack GSOC. So what is this? Okay. So a person who has just joined the college, he is telling me like I want to like crack GSOC. First of all, what this is not IIT JEE. You have to crack in this year. Okay. So I would first say do not make it IIT JEE. Everyone says, but we all like know like when there are a lot of competition, we make it like okay, पहले साल में निकालना है, दूसरे साल में निकालना है, मुझे 12th में निकालना है. So the first thing that you have to keep in mind is like when you of course you should do GSOC, okay, because it's like a achievement. Okay, you are going into Amazon, that's achievement. If you are like learning something, that's a achievement. So keep GSOC as an achievement, that's fine.
Now understand yourself, like are you ready? If you are in first year and you do not know anything about the coding, okay, now you are like pushing yourself, I want to crack GSOC in the first year itself because that another person, there's like 2-3 person who have cracked the GSOC in first year or second year. So do not do that, okay. Of course there are chances like that first year person has already done some kind of coding before and that's why he is able to crack it, okay. So you don't have to like push yourself in the first year. So first of all understand, okay, first learn some languages, technologies, maybe Node or React or anything in first, second and third year, okay. The best time for, I would say, like for doing GSOC is either second year or third year, okay. The best time is second year, okay. The very next best time is third year, okay. At that time you have internships as well. So till that time prepare yourself in one technology, okay. I am very good in Node, I am very good in C++, I am very good in like artificial intelligence. Once you have done once you are confident doesn't mean like you have to go in depth. It should be like if I give you a lot of code base, you should be able to understand what is written in that, okay. That's the key to go into the GSOC. GSOC is nothing, it's not very tough. It's just like you don't, some people understand the code and some people don't understand the code, and those people who are not able to understand the code are those people who don't know about that language. They are just pushing themselves. So once you are like, you know, okay, this is third year, I have to, and then keep in mind like I have to like go into the GSOC this year. Now what you have to do is like basically why people say, you might have read about a lot of blogs, they say like start early, start contributing early in December, November, October. some people say like 1 year before. Why they say? Because it takes time to understand, it takes time to go through all the organizations and list out, okay, this project I want to do, okay. You have to understand, okay, this project is beneficial for me, this is the JavaScript project and I am very good with it. So it's good like you start by December. Previous जो पुरानी organizations है वही organizations repeat होती है mostly. Sub organizations पे मत जाना. Sub organizations are like, there is one organization, major organization, let's say like any Score Lab is there, and under Score Lab there is another organization. Do not go in that because they get cancelled in subsequent years. So जो main organizations है उसके अंदर देख लो कि like क्या क्या projects हैं, and the main part is like you have to choose a project which you are like very good at, okay. Very good in the sense वो technology तुम्हें आनी चाहिए. सारा खेल इसका नहीं है कि you are very good, ये भी है कि भाई कितना कोड समझ पा रहे हो उसमें और कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें. There is one organization called as Rocket Chat, okay. उसके अंदर 200 लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट से भरा हुआ है, okay, and everyone is very good with JavaScript. So what will happen, like you will go in there, you have very high competition. There is another, at the same time, another organization which is like this what database is there, like Postgres, okay. This Postgres organization is there. उसमें एक साल किसी ने अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो इतना मुश्किल है. रॉकेट चैट में 200-300 लोग भरे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है. सो व्हाट यू हैव टू टैकल, जस्ट अब पता कैसे चलेगा कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? उनके स्लैक चैनल्स, वट एवर चैनल्स दे हैव पुट ऑन द लाइक गूगल वेबसाइट, उसमें जाओ, उसमें देखो भाई कितने लाइक लोग मैसेज कर रहे हैं. सो रॉकेट चैट में जस्ट सी, ओके, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, उसमें कोई भी नहीं है. इट वुड बी टफ बट स्टार्ट इन दिसंबर एंड लाइक हो जाएगा. 1 महीने लगातार कोड को देखोगे सब समझ आ जाएगा, ओके. सो गो इन दैट, और दैट्स द की. लाइक इट्स नॉट ऑलवेज कि तुम जावास्क्रिप्ट में अच्छे हो तो मुझे बस, if you're very good at JavaScript, okay, then tackle Rocket Chat, but be ready for competition, okay. So just go in like any of the organization, and I think we will discuss about the roadmap, right? How to make proposals and all that. So I will tell you about that stuff in. So there is one more thing in this, because what happens is, so every year organizations get different number of selections. So if you go to the GSOC website, you can see that how many proposals were accepted by this organization last year. So you can get an idea कि कितने proposals select होते हैं और फिर कितना ज़्यादा competition तुमको मिल सकता है, right? So जहाँ पे 1 या 2 proposals select होते हैं तो उस पर इतना ज़्यादा concentrate नहीं करना. जहाँ पे 5-6 एटलीस्ट या
लाइक मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इट वाज सो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इस ईयर देयर वर 18 प्रपोजल सेलेक्टेड। ये मैं 11 सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करो जहाँ पे ज़्यादा नंबर प्रपोजल सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हारे चांसेस क्योंकि बढ़ जाते हैं। जब मैं कुछ ऐड करता हूँ, लाइक मेरे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, लाइक सबने इन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी, मेरी जीसॉक में मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। मेरे में ये था कि नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, लाइक उनकी बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं जीसॉक के लिए निकलते हैं जो प्रोजेक्ट्स, जैसे मेरा प्रोजेक्ट था जो बिल्कुल जीसॉक के लिए निकला था, तो मैंने अपना एक डेमो ऐप बनाया और मैंने जब वैसे सिलेक्ट हुआ था। तो इसमें एक मेन पॉइंट आता है नेटवर्किंग का, जो स्लैक चैनल पे अगर तुम ज्वाइन करके रखो, उनसे बात करो, मेंटर्स से बात करो, तुम्हें आइडिया लगता है वो क्या चाहते हैं और किस बात में, लाइक तुम्हें आइडिया भी लग जाता है कौन से नए प्रोजेक्ट आ सकते हैं इस साल में, लाइक दे गिव यू द हिंट। जैसे प्रोजेक्ट्स का, जैसे अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन सीसी एक्सट्रैक्ट डेवलपमेंट, वहाँ पे एक तो अब जैसे नई टेक्नोलॉजीज पे एक तो ये रहता है कि उनमें कंपटीशन कम पाता है। जैसे फ्लटर पिछले साल तक थोड़ा कम था, जैसे नई एक तो लाइक थोड़ा नए इस एक साल में जैसे बहुत अलग बूम आया है फ्लटर का, जैसे मुझे जो लगता है। पर एक साल में जो उस साल कंपटीशन एक तरह से मेरे में 4 से 5 वो थे कॉम्पिटिटर्स, लाइक ऐसा सीन था। तो लाइक अगर तुम मेंटर्स वगैरह से बात कर लेते हो तो तुम्हें बहुत बेनिफिट मिल जाता है नए प्रोजेक्ट्स के लिए, कि वो तुम्हें पहले ही गाइड कर देते हैं, तो देयर इज अ हायर चांस ऑफ यू सिलेक्टिंग देम, क्योंकि तुम्हें आइडिया होता है प्रोजेक्ट के बारे में करना क्या है। और तुम कई बार ये होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन से ये भी कहते हैं कि तुम खुद से प्रोजेक्ट ले आओ, नए प्रोजेक्ट्स, यू कैन गिव देम द आइडियाज़, कि जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करो कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मेरे में लाइक प्रॉपर ओपन सोर्स, उसमें कुछ भी जैसे मेरे आर्ट टोरेंट के बारे में सुना है, जैसे बिल्कुल थोड़ा सा, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने वो बनाया है, तो उसने ओपन सोर्स में जैसे आर यू टोरेंट है, तो ऐसे नए नए डिफरेंट ऐप्स लेके आती है ऑर्गेनाइजेशन, तो यू कैन गिव देम द आइडियाज देयर इज, और अगर उन्हें वो आइडिया बहुत पसंद है तो देयर इज मच हायर चांस ऑफ यू गेटिंग दिस सिलेक्टेड। और आपका अगर ओपन सोर्स में थोड़ा बहुत बेसिक हो तो आपको और आइडिया हो जाता है कि लाइक कैसे करना है आपको। अगर आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो, लाइक इफ़ यू वांट टू बिल्कुल न्यू उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जाना हो, जैसे यू हैव 3 प्रपोजल चांसेस, लाइक आपने 2 में कंट्रीब्यूट कर रखा है और 1 में नहीं कर रखा, तो 1 में आप लाइक थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लेके जा सकते हो। ये मैं एक नई चीज़ इनमें लाइक ऐड करना चाहूँगा। Okay, that is pretty much self-explanatory, है ना? So जैसे मोहित अभी बता रहे थे, we have a model timeline कि कैसे how it works. So आप एक बार रोड मैप अगर आप यहाँ देखो इसलिए बताओ कैसे। Yeah, so दिस इज 2023 वाला है। लेटेस्ट So this is like timeline. So like I think you would find this timeline on the website as well. So the thing is like if you have not started yet, okay, I think it's the time to start. The actual organizations will be revealed by March, okay, like in the March, Feb end week. But I think most of the organizations will repeat, and I think you at this time, if you want to go into the GSOC, this is the great time. This is not like late. I actually started after organizations was announced. Okay, so I think this is the if you are like in any of if you are like very good with any of the technologies, just at this time start analyzing all the organizations. Okay, the thing is, as I said, the key is good proposal. Okay, your past work. Okay, these 2 things are there, and the third thing is also how you analyze and select an organization and a project. तुम्हारे पास लाइक सब कुछ तुमने कर लिया, तुम्हारे पास नॉलेज भी है, तुम्हारे पास लाइक तुमने बहुत पहले भी शुरू कर दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन गलत चूज कर ली। ओके, तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। ओके, दैट्स व्हाई वी से लाइक whosoever submits a good proposal in a GSOC and he is not able to get into, इसका ये मतलब नहीं है कि वो GSOC he cannot go into GSOC. It was just कि 10-20% उसका रह गया, he didn't select correctly. अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 10 proposal, they're like very good proposals that are coming at the same time. So उसमें से एक ही select कर सकते हैं, because for one project either there is 1 slot or 2 slots. ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2 हो जाते हैं। कभी कभी अगर बहुत ही अच्छे आ गए तो एक ही सिलेक्ट करना पड़ता है। और वो एक सिलेक्शन में ये ध्यान रखना कि प्रपोजल के अंदर लाइक देयर इज लाइक एज ही सेड अबाउट कि एक प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट होता है और एक ओल्ड प्रोजेक्ट होता है। ओके, सो इन लाइक इन द प्रपोजल सेक्शन व्हाट एग्जैक्टली, मतलब एक बेस्ट प्रपोजल कैसे बनाना है। सो वन थिंग इज लाइक इफ इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट,
तो उसमें डेमो दिखाना है, वो आसान होता है. इफ इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट दैट्स लाइक इजी टारगेट, बिकॉज उसके अंदर पुराने कंट्रीब्यूशंस के ऊपर इतना असर नहीं पड़ता है. एंड यू जस्ट हैव टू लाइक उसका एक डेमो बना दो. लेट्स से इट्स अ वेबसाइट, यू हैव टू मेक फिग्मा डिजाइंस एंड मेक अ POC एंड देन एक्सप्लेन इन प्रपोजल दैट आई विल बी डूइंग लाइक दिस. ओके, देयर इज अनदर प्रोजेक्ट विच इज ओल्ड प्रोजेक्ट, उसमें कंट्रीब्यूशंस करना पड़ेंगे, ठीक है. एंड कंट्रीब्यूशन इज लाइक कि कम से कम 10-15 कंट्रीब्यूशंस. व्हाट वी एनालाइज फ्रॉम दैट इज लाइक यू नो अबाउट द कोड बेस, तुम्हें समझ आ गया है, अब हमें समझाने की जरूरत नहीं होगी. व्हेन यू विल कम इन एज ऑन बोर्ड फ्रॉम अप्रैल, ओके, व्हेन द कोडिंग पीरियड स्टार्ट्स. तो वो इसलिए होता है कंट्रीब्यूशन कि भाई यू हैव सेट अप होल रेपो इन योर लाइक लोकल stuff and you are able to understand अच्छा इस डायरेक्टरी में ये है, इस डायरेक्टरी में ये है. ओके, सो प्रपोजल को टैकल करने का यही तरीका है, लाइक कि 2-3 स्टफ. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम. अगले एक हफ्ता लगता है. आई मेड लाइक माई फर्स्ट चॉइस व्हेन आई decided to go into the GSOC. I decided, okay, this will be my first priority of organization, then second, then third, then fourth. I made 5 lists, top 5 organizations. Then I selected, okay, this will be the project that aligns with me. And I think that will take 1 week of time. So today, like after this, you can decide for next 1 week which project to choose. And then from now onwards, till the organizations are announced. Okay, do not like, I think in some organizations mentor will revert back and in some they will not revert back. Okay, so and currently organizations are deciding the projects. Okay, so our organization is also deciding, maybe we will be releasing 2 new projects this year. So like we are deciding the projects, and till that time you just contribute to the old repos, okay, and find it which is the best till like Feb end. And once organizations are announced, just review it back again for 5 days. You already know you have top 5 in your list, right? Top 5 projects. So just review it again and then make the final contributions, engage with the community and make the final proposal. Yeah. शायद आपने कब स्टार्ट किया था? मैंने किया लाइक आई हैव स्टार्टेड इन द जनवरी, लाइक फाइंडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस. दिस इज द टाइम लाइक आई हैव स्टार्टेड दैट. Like I am talking to the past GSOCers like from December, so how to contribute, like I have no idea about that, so I was talking to them and then finding the organization. There is a good page in the GSOC where you can easily search the like your according to your code base. Like I have finalized it, I have to do in the Flutter code base. So there are, when you search according to Flutter, they simply list the organization, which is a really help for you, like I can say that. So I have choice my 3 organizations, my top 3 organizations, and check their Slack channels, communicate to them, and like talk about the projects are ongoing. So then I finalized my organization and tried to submit my proposal by the starting of the date. As like if you have submit your proposal to them, to the GSOC and to the mentors, there is a high chance that the proposal can be seen by the mentors before the final submission of the proposal. Like you have the date to like March 20 to April 4. I have like submitted on March 20 and I do my changes by April 1st in the proposal if the mentor has responded to me. So that can be the like if you make proposal and before the proposal submission. So that can be the helpful, like if mentor respond to you can change the proposal in that. And also like finding the code base, like as he said, like finding the code base. And another thing in the proposal, the timeline. There's a major thing you can the major thing they ask about this, the timeline, like what work you will do. They want the specific details, like what work will you do and what interval of the time you will do, like before the midterm evaluation what will you submit by them, and final what will you do, and how you make the other documentation stuff. They all want to know in your proposal. So that's my point about that, like how to make a proposal and when to get started about that. अमीर आपने कब स्टार्ट किया था? So my case was a bit different from them because I started in December. So by the time the organizations were announced, I was almost sure because कि मेरा हो ही जाएगा. Because so उससे पहले ही मैंने actually
दो प्रोजेक्ट्स पे एक्चुअली मैं पहले से ही काम, एक प्रोजेक्ट में उस टाइम पे काम कर रहा था उस ऑर्गेनाइजेशन में, एंड देयर वाज वन प्रोजेक्ट जो मैंने पहले ही पूरा कर दिया था. सो आई वाज कम्प्लीटली श्योर कि ये होगा तो मेरा तो हो ही जाएगा काइंड ऑफ. तो दिस इज़ ऑल्सो एन अप्रोच जो कि होती है, बिकॉज आई वॉज लाइक कि जैसे इन्होंने कहा कि 5 मैंने टॉप अपनी प्रायोरिटीज़ ले ली. सो दैट्स ऑल्सो अ वे. वन वे इज़ कि तुमने एक ही प्रायोरिटी ली और तुमने उसको देखा कि प्रीवियस ईयर्स में उनका कैसा है. बिकॉज जैसे कि सो आई एज आई प्रीवियसली टोल्ड कि नंबर ऑफ प्रपोजल्स जितने सेलेक्ट होते हैं, अगर ज़्यादा प्रपोजल सेलेक्ट हो रहे हैं कंपनी से, दैट मीन्स कि उसके इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं. राइट, अगर 1-2 सेलेक्ट हो रहे हैं तो देयर इज़ अ चांस कि वो इस साल नहीं आएगी. ठीक है, तो यू टारगेट अ कंपनी जिसके ज़्यादा प्रपोजल सेलेक्ट हो रहे हैं. सो ऐसी कंपनी को अगर तुम पहले टारगेट कर लो तो यू आर काइंड ऑफ, और फिर वहाँ पे एक बार कॉन्टैक्ट हो जाए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद में, तो इट्स लाइक कि यू आर ऑलमोस्ट श्योर कि हो ही जाएगा. सो एंड देन बिकॉज वन बेनिफिट इज़, अगर तुम अर्ली स्टार्ट करते हो, अभी तो मैं बता रहा हूँ बिकॉज ये लेट हो गया है तो अब तो तुम अभी से कर सकते हो, बट अगर अर्ली स्टार्ट करते हो तो देर इज़ अ बेनिफिट कि तुम प्रपोजल्स बनाना सीख सकते हो पहले से. अगर तुम प्रीवियस कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो तो बिकॉज माई कंपनी वॉज लाइक व्हेन आई वॉज डूइंग द प्रोजेक्ट, सो आई हैड टू मेक अ प्रपोजल फॉर दैट प्रोजेक्ट एज वेल. सो आई हैड अ ब्रीफ आइडिया कि प्रपोजल कैसे बनाया जाता है. राइट, सो उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी. बाकी आई थिंक इफ़ यू वांट टू गेट एन आइडिया कि प्रपोजल होता कैसा है, तो इट्स वेरी सिमिलर टू आई थिंक व्हाट आई लर्न वाज कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर तुम्हारा कोई कोर्स होता है जिसके अंदर तुमको बताते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट कैसे चलता है, तो इट्स ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट. उसके बारे में ही उसके अंदर लिखना रहता है कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी, क्या क्या टाइमलाइन होगी जिसके अंदर तुमको वो वाला पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डालना है या पूरा करना है. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट दैट. ठीक है, एक और बात इसमें ऐड करूँगा, जैसे अर्ली की बात कर रहे हैं, लाइक इस टाइम पे मैंने इस साल ज़्यादा देखा है कि जैसे मैंने हैकटूबर पे बहुत फोकस किया गया है. जैसे हैकटूबर में लाइक जीसॉक के ऊपर कि लाइक हैकटूबर में बहुत कंट्रीब्यूशन करी गई है, ताकि एक तो हैकटूबर का ये रहता है कि जैसे वैक्स वगैरह वाला थोड़ा रहता है, और ये चाहते हैं कि जो जीसॉक वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ही कर ले क्या, ताकि इसमें और हमारी जो कंट्रीब्यूशन है बनती जाए. इस बार हैकटूबर पे ये रहा है लाइक चेंजेस. सो एक्चुअली प्रपोजल्स की ना रैंकिंग होती है. सो व्हेन यू सबमिट द प्रपोजल, सो जितने भी सबमिशंस आते हैं सबकी रैंकिंग होती है. उसके अंदर से रैंक करने के बाद सो इस बार बताता हूँ एक फ़नी चीज़. सो इस बार क्या हुआ था, जीसॉक की साइट पे एक माइनर एरर था जिससे अपने को ना रैंकिंग दिख रही थी कि मेरा प्रपोजल किस रैंक पे है इस साल. सो वो एक चीज़ हुआ था अभी जीसॉक की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे. तो देयर इज़ अ पीरियड जब प्रपोजल सबमिशन होता है, तो बिफोर द फाइनल जो लिस्ट आती है उससे पहले देयर इज़ अ रैंकिंग थिंग. तो वो होता है और उसके हिसाब से जो टॉप प्रपोजल्स होते हैं फिर दे आर नॉट सेलेक्टेड. ये तो एडमिन इनको तो पता होगा. हाँ यही लोग. सो ये जो एडमिन होते हैं जीसॉक एडमिन, सो हर कंपनी जो भी आती है ना जीसॉक में, सो देयर आर 2 to 3 जीसॉक एडमिन्स इन दैट कंपनी. एडमिन्स एंड देन मेंटर्स. हाँ, तो एडमिन्स डिसाइड कि वो वही रैंक करते हैं एक्चुअली प्रपोजल्स को. तो बस इसके बाद लाइक मैसेजेस मत करना. आई गेट दिस प्रॉब्लम लाइक ओके, आई गेट लॉट ऑफ ईमेल्स लाइक दिस. मुझे दिसंबर से आना शुरू हो चुके हैं. सो एंड लाइक एंड इफ यू थिंक लाइक आई विल रिवर्ट टू दैट, लाइक इतने मेल्स तो मैं नहीं देख सकता हूँ. ओके, it's just like कि if you have a good proposal you can rank it and I can help you like how to get to that level. to get to that level कि वो हो जाए. बट ये मतलब नहीं है कि like अब if you are texting me and आधे लोगों ने तो मेरा नंबर भी निकाल लिया पता नहीं कैसे. So said I want to get into GSOC, can you help? So this is not like ये भी होता है लाइक जैसे एक्टिव मेंबर ज़्यादातर स्लैक के मैंने देखा है कि मैं एडमिन ही होते हैं जैसे ज़्यादातर. लाइक मेंटर्स इतने एक्टिव नहीं दिखेंगे जितने आपको ऑर्गेनाइजेशन एडमिन्स दिखेंगे. जैसे मतलब मैं 3-4 ऑर्गेनाइजेशन देखी है, सब में लाइक एडमिन्स ओवर एक्टिव है और मेंटर्स बिल्कुल अंडर एक्टिव है. ये सीन है. Right. So we just spoke about ki how it is important to collaborate and to have connections or जैसे अभी पंकज ने बोला कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट करने के लिए भी आपके लिए नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगला सवाल इसी पर ये कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट
for you to know the people who are applying in the same form or who are applying along with you. है ना? So Pankaj, Yeah, so I think it's so it's really important that you know ki who are the people who are applying along with you. Like for my case, so all of the people who are a contributor, so we had a meeting and we decided ki this is the project that I want to target, so you don't target this project. so this was the kind of thing. So I think it's really helpful because अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट किसी दूसरे के साथ क्लैश नहीं कर रहा है तो there is a major chance कि you will get selected, right? So if you are like in contact with other contributors as well, I think it's about in contact with other contributors or yes. So yeah. So if you are in contact with other contributors as well, you have an idea that which are the different projects that they are targeting. So you can pick up a project that other people are not targeting. So there is less competition in that. Okay. Nishant? मैं इसका तो लाइक कुछ भी नहीं किया कंट्रीब्यूटर्स जैसे स्लैक चैनल में पता चलता था कि ये बंदे कर रहे हैं, तो मैंने तो ये देखा जिस प्रोजेक्ट में ना कम मेंबर थे उसके जो प्रॉपर ग्रुप में मैंने उस प्रोजेक्ट को थोड़ा देखा कि इसमें कम मेंबर है, थोड़ा कंपटीशन भी कम है और वो मेंबर्स से एक्टिव नहीं थे। जैसे मैं वहाँ पे थोड़े बात करता था तो मुझे ये आइडिया लग गया इस प्रोजेक्ट में थोड़ा कम कंपटीशन है तो मैं इसमें चला जाता हूँ। मेनली मैंने ये देखा था जैसे क्योंकि तो और प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें कंपटीशन पहले से बढ़ जाता है क्योंकि कंट्रीब्यूशन कई कर चुके होते हैं, पर जो बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनमें ये होता है कि लोगों को पता नहीं, अगर तुम मेंटर से बात नहीं करोगे तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं प्रोजेक्ट क्या आने वाला जो बिल्कुल। तो मेरे में तो ये केस था कि कंट्रीब्यूटर से तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो, पर बाद में हो गए थे लाइक जो हमारा एक तरह से हमने CC एक्सट्रैक्टर के जो हुए थे सिलेक्ट सारे इंडिया वाले सब ने एक ग्रुप बना लिया था, उस पर फिर एक तरह से बात करते रहते थे क्या काम चल रहा है सबकी उसमें। तो लाइक मेरा ये था कंट्रीब्यूटर के साथ जो मतलब कोलैबोरेशन जो हमने बात की, और तो मेरा तो इसमें कोई सिंपल यही रहा था। मोहित मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा अलग है कि जैसे हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू नो कि पीपल हु प्रीवियसली कंट्रीब्यूटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने बोला कि आपने 5 ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, सो इज इट ऑफ एन इम्पोर्टेंस कि भाई कि हाँ ये 5 ऑर्गेनाइजेशन में इसको जानता हूँ कि इसने थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, तो डज दैट आल्सो होल्ड एनी इम्पोर्टेंस कि समबडी इज कंट्रीब्यूटेड एनी फॉर्म बी इट इन एनी फॉर्म ऑफ कोडिंग? हाँ लाइक इसका फर्क पड़ता है, लाइक यू आर आस्किंग कि लाइक कि इन्होंने पहले कंट्रीब्यूट कर रखा हाँ, जैसे अगर मैं आपको जानता हूँ तो मेरे लिए और क्या हेल्प होगी? ये तो सीधे रिश्वत वाली बात है। ओके सो इसका फर्क पड़ता है, लाइक इफ आई नो समवन ओके कि उसने लाइक आई नो ही इज वेरी गुड विद समथिंग, नाउ द थिंग इज लाइक हाउ वी डिसाइड, लाइक हाउ एडमिन्स एंड हाउ मेंटर्स डिसाइड कि ये बंदा सिलेक्ट होगा। तो व्हेन वी गेट अ प्रपोजल, ओके प्रपोजल क्या है सबके लाइक ऑन एवरी वेबसाइट यू विल फाइंड एवरी ऑर्गेनाइजेशंस प्रपोजल। अब तो एक गिटहब रेपो भी बन चुकी है ओके विच कंटेन्स प्रीवियस पास्ट ईयर प्रपोजल्स। इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्रपोजल्स होते हैं। हाँ मेरा सो या तो जब हमारे पास प्रपोजल पहुंचता है सो व्हाट वी डू इज लाइक ओके वी अंडरस्टैंड कि how you are implementing some stuff, okay so we understand okay you have done this thing, you are saying like I will implement in React, then I will make like this, then I will use this algorithm to make the better search, जो भी है like this is the proposal. Now what comes next कि क्या like इससे मेरी बातचीत हुई थी पहले, okay now let's say कि पहले बात तो प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोजल इटसेल्फ तुमने क्या लिखा है। आधे से ज़्यादा लोग व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू इज लाइक दे ब्लफ ओके। आदत है ना लाइक कॉलेज में लाइक टू फैकल्टी वी से एनीथिंग राइट कि वी विल मेक AI मॉडल विद दिस थिंग, वी विल go to cloud and come back from cloud, so we say all these things right in usually. So in proposal also if you put these things now straight away reject, because we understand, because we have done some stuff on that project, so we know what you are saying, so we will straight away reject it. So your proposal should contain the main points, okay, how you are going to implement। भाई सीधा सीधा अगर सिंपल वेबसाइट है तो उसके अंदर फिर AI मॉडल घुसाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल वेबसाइट है भाई, रिएक्ट में है, ऐसे ऐसे करेंगे ओके। नाउ अगर इफ लाइक इफ देयर आर 3 पीपल ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वी लव द प्रपोजल, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हर प्रपोजल के नीचे बाकी चीज़ें भी होती हैं
कि पहला तो ये होगा कि क्या मैंने इससे बात की है चैट में पहले, क्या मैं इसको जानता हूँ, एंड हाउ गुड ही इज. ओके, दिस डजंट कम फर्स्ट. This comes after we have selected your proposal as a top proposal. Then we think, okay, he is like good. I know him. He is very good coder and I have interacted with him. ये कर लेगा, ये भागेगा नहीं. So we like select that. Otherwise, like what happens if we don't know anyone? Okay, or like it's not only about that part also. Like if I know this person as well, but his work experience, his past open source contributions are less than this person. Okay, that's why these things are also important. Mention your CGPA as well in proposal. Why I am saying, like if you have a good CGPA, mention that. This comes at the time when 2-3 people are on the same page. Okay, उनका सब कुछ सेम है. अब हम कैसे डिसाइड करें? कुछ तो पॉइंट चाहिए ना कि इसको फर्स्ट पे रखना है, इसको सेकंड पे. So we try to differentiate जो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं. ओके, वन थिंग इज लाइक योर वर्क एक्सपीरियंस. तुमने 10 इंटर्नशिप कर रखी है, एक और ने एक ही इंटर्नशिप कर रखी है, तो 10 इंटर्नशिप वाले के पास इट विल गो मोर ऑन द एक्सपीरियंस बेसिस. इफ वो भी सेम है, देन वी गो ओके, इसने इफ ही नोज द पास्ट कंट्रीब्यूशंस, अच्छा वो भी सेम है, अब नेक्स्ट पार्ट ओके ही इज लाइक, फिर और भी चीज़ें आएंगी. मतलब हम किसी तरह डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे. सो इफ एट द एंड इफ इट्स अ CGPA, वी विल डिफ्रेंशिएट ऑन द CGPA. ओके, of course like rest of the points holds more things, but make your proposal like everything. It's like resume plus how you going to implement this particular project. Okay, and of course if you are interacting, why people say interact with mentor, because फिर एक connection हो जाता है. But I would usually say like हर organization के mentor अलग अलग है, और admin हर कोई revert नहीं करेगा. Okay, they are also busy in like their own work, so they will get active mostly like towards the end of like proposal deadline for students. They will get active at that time. So uske at the end just okay, this is my proposal, can you review it? Do not ping multiple times. If they have to revert, they will revert. If they don't, they will not revert. और इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने revert नहीं किया, you are not selected. Okay, they will like select you. So that's the thing. एक और चीज़ मैं इस पर ऐड करूँगा, लाइक एक जो ऑर्गेनाइजेशन लोग तो थोड़ी स्टडी कर लिया करो. जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ना, मेरा एक और मेरे दोस्त दोनों ने सेम प्रपोजल दिया था, लाइक लगभग सेम था. तो उसने ना ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि लाइक उसने कम्युनिटी लिख दिया और एक में ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया. तो कुछ वो ना उस बात पे भड़क गए थे, लाइक जो मेंटर्स है ना, कहते हैं कि जो प्रॉपर तुम अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम उसके बारे में करोगे क्या, लाइक वहाँ पे जाकर काम क्या करोगे. तो ये थोड़ा पॉइंट हो रहा है कि लाइक इस चीज़ का और थोड़ा देखते रहा करो. जैसे मतलब उनका ये था कि अपना चाहे कॉलेज का नाम मत डालो, पर तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो पर उसके बारे में जरूर थोड़ा रिसर्च करो, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है. इस बात में मैं ये ऐड करूँगा. इसी के ऊपर एक और पॉइंट है कि ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले ही बोला, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है. ये कीप इन माइंड दैट हर जो तुम लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल्स, इफ़ यू आर लाइक रीडिंग मीडियम आर्टिकल्स, सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. बट इफ़ यू गो स्ट्रेट अवे ऑन दैट पार्ट, यू विल नॉट सक्सीड. ये याद रखना, क्योंकि हर ऑर्ग डिफरेंट है, उनका वे ऑफ सिलेक्शन इज डिफरेंट, एंड लाइक देयर वे ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स इज डिफरेंट. सो कीप इन माइंड कि मतलब बस ये होना चाहिए कि ऑन ऑल द सेंस यू आर गुड, योर प्रपोजल इज गुड, योर कंट्रीब्यूशंस आर गुड, ओके, एंड योर पास्ट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो गुड. एंड पास्ट एक्सपीरियंस इज लाइक द लास्ट स्टेज. अब जैसे रॉकेट चैट में क्या है ना, उन्होंने लीडर बोर्ड लगा रखा है. ओके, तो जो सबसे हाई लाइक टॉप लीडर बोर्ड में एंड में होते हैं ना, लाइक एट द एंड इफ दे आर इन द टॉप लीडर बोर्ड, व्हेन दे आर कंट्रीब्यूटिंग, यू मेक पुल रिक्वेस्ट टू देयर रेपो. उन्होंने उसी रेपो पे लाइक टॉप कंट्रीब्यूशन का एक लीडर बोर्ड लगा रखा है. वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, टॉप लीडर बोर्ड में लोग देखते हैं ये है, वो सीधे सिलेक्टेड. ओके, और कुछ अगर उनको लगेगा कि नहीं इसका इतना भी नहीं है ठीक, तो एक दो का चेंज हो सकता है, बट टॉप लीडर बोर्ड उनका मेन क्राइटेरिया होता है. सो जस्ट कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग. ऐसे ही एक और है, उनका अलग तरीका है, उनका सिर्फ ज़्यादा प्रपोजल पे होता है. तो यू हैव टू एनालाइज, मतलब पास्ट प्रपोजल देख के है, एंड मेक योर प्रपोजल ऑल राउंडर. अब ये मतलब नहीं है कि यू आर जस्ट मेकिंग गुड प्रपोजल एंड यू आर नॉट मेकिंग कंट्रीब्यूशंस. ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी रखो. वो कह रहे हैं कि नहीं चाहिए तब भी रखो. ओके, जस्ट मेक श्योर यू आर लाइक गुड फ्रॉम ऑल द साइड्स. कहीं से भी यू आर नॉट लूजिंग एनी पॉइंट. सो इफ यू आर कीपिंग दैट इन माइंड,
बाकी वही लाइक यू विल गेट इनटू इट, देयर इज नॉट लाइक अ बिग डील टू गेट इनटू इट। दूर से बहुत मुश्किल लगता है, जब वो कर लोगे ना बोले ये क्या था। सही में ये वाली बात So, है। इसके अंदर एक और चीज़ होती है। सो व्हाट हैपेंस इज मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर व्हेन यू अप्लाई, सो दे से कि मिनिमम 3 PRs होनी चाहिए तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशंस में, और मिनिमम 5 PRs तुम्हारी होनी चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशंस में। सो ये चीज़ हमेशा देख के रखना, क्योंकि क्या कुछ कट ऑफ क्राइटेरिया भी है कि मिनिमम इतने PRs होने चाहिए तभी तुम्हारा प्रपोजल सेलेक्ट होगा। सो दैट थिंग इज़ ऑल्सो देयर। सो ऐसी कंपनीज, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करना जहाँ पे तुम्हारा ये मिनिमम कट ऑफ जो है वो एटलीस्ट पूरा हो रहा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज कि कई बार प्रपोजल बहुत बढ़िया आ जाता है, सब कुछ लिख दिया, ठीक है, एक्सपीरियंस क्योंकि था उसको पहले से, बट उसको कोड बेस के बारे में नहीं पता है। और कोड बेस के बारे में कब पता होगा, व्हेन यू हैव प्रीवियस कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द कोड बेस। तो उस केस में द पर्सन इज दैट इज सेलेक्टेड एज द पर्सन दैट हैज़ प्रीवियस कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द कोड बेस। भले ही उसका थोड़ा सा कम भी हो उस दूसरे बंदे से प्रपोजल, बट अगर तुम्हारे प्रीवियस कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं तो उसके बेसिस पे तुमको सेलेक्ट भी कर लिया जाता है। ऑल इन ऑल सब कुछ करना इम्पोर्टेंट है, सबसे बात करना इम्पोर्टेंट है। ऑल इन ऑल सुनो सबकी, करो मन की। सही बात है। और एडमिन को हिट मत करो, इसलिए बताओ प्लीज, एग्जैक्टली, एडमिन भड़क जाते हैं वो ज़्यादा। भड़क जाते हैं, मैं भड़क चुका हूँ अभी लाइक। So, एग्जैक्टली, मतलब जीसॉक करने के बाद अगर तुम भी कर लोगे तो तुमको लिंक्डइन पे इतने सारे हाँ, मैसेज आएंगे ये- कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने ना लिंक्डइन 2-3 महीने पहले छोड़ दिया था, मैंने कहा लिंक्डइन ही नहीं खोलना। मेरे सही में ये हुआ था, लाइक मैंने तो अभी जैसे लास्ट जब लिंक्डइन खोला ना, मतलब इन्हीं की इनवाइट आई थी लास्ट में जब लिंक्डइन खोला, मैंने कहा लाइक दिस कैन बी द ओल्ड मैसेज, सो आई हैव चेक द डेट आल्सो कि दैट दिस इनवाइट इज द न्यू and what people messages like, गाइड अस। hi sir, and like I want to get into GSOC, how to start. हाँ, like Now, this. I should explain you how to start like on a LinkedIn message. So, because they are reading it from Medium, okay, they are reading like watching YouTube channel की approach, mentor and make collaboration. उनको लगता है कि if I just message it and ask it, that's the key. ये करना बेकार है। मैंने भी नहीं किया था, क्योंकि why I should ask like how to start. I think there are a lot of we are here, so you should not message anyone like after this session that how to start, right? Sir, what you need to ask, that is, and the mentor will also revert and I will also revert, that is, you are doing some code, like you have set up the repo and you are stuck at some place. I am getting this error, can you help me please? Okay. In the proposal, should I write this timeline as this or this? Should I write contributions on top or below? These are the valid ones. Pick like exact points where you are really stuck. Okay, ask those questions to mentor, they will revert and that will help you to get into the pipeline. Okay, They also remember your name by these points. yeah, Like please do not write how to start. Okay, so if I got this message, I simply give them the YouTube video. Like simply check this video. You can get how to start. Then go to the organization. Most of the time you simply ignore it. Yeah, that was happen. I mean, if you are getting 100 of messages like how to start, you can't really revert back to everyone, right? I simply share the video. सो मोहित ने अभी कुछ देर पहले काफ़ी अच्छे से बताया था कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कैसे चूज करी। द नेक्स्ट थिंग इज ओनली निशान, हाउ डिड यू चूज योर ऑर्गेनाइजेशन? I simply said like Flutter. I checked the search tag like Flutter. There are 10 to 15 organizations. There are not so much organizations. So I go to every Slack channel and check their previous projects, like their website, their previous projects, and then final like my top 3. Like I am working on Dart, so I think that the Dart organization is like the work I have done. So I check their organization, but there is a high competition, so that was on my third like list. Second I was Libre Health, like they have a AI model thing, so that is like something complicated for me. And then the CSEC sector, their projects are simple and they have good mentors, like they are easy to communicate, they simply revert me back, so I got a good impression, so I finalized my as an organization. Okay. So जैसे all three of you spoke about community में अगर लोग ज़्यादा होते हैं, so competition is more if people are applying more. So community engagement is also a big factor. Yes. like
It's a factor. Okay, as I said, when we choose like proposal, then we see okay who was more engaging. Some people like is helping like some other person in the community, so that counts. But that is not like you just like ping ponging into the community like continuously, like Spamming. spamming and asking irrelevant questions. Okay, you are not getting error, you are still asking error. Okay, you are just asking anything. So that is not like community engagement. Be the real community engagement. If you need any help, you will need help. Okay, when you are like setting up the project, you will get stuck at some place and automatically a question will come. So then just ask that thing, and that will be the genuine question, and they will revert. As I said, they will do that part. But like just communicating just for the sake of getting the points, that of no use. सो पंकज अकॉर्डिंग टू यू जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना कि जैसे आपने बोला कि जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, फिर उसके बाद कैसा प्रोजेक्ट है, कंपटीशन क्या है. सो फॉर आप एक ऐसा इफ यू कैन लिस्ट डाउन एंड ब्रीफ कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या था एंड फिर मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि हाँ चलो ये फैक्टर करो बट उतना भी मत करो कि आप मना ही कर दो उससे. राइट. सो आई थिंक वैसे तो मैंने इसके बारे में अभी बोला भी वैसे तुमको, बट इफ़ आई हैव टू लिस्ट डाउन इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द कम्युनिटी शुड बी एक्टिव. वो डेड कम्युनिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज डेड कम्युनिटी से कभी भी तुमको रिवर्ट बैक नहीं आएगा. सो देर इज़ हायर चांस कि मतलब अगर वहाँ से सेलेक्ट होते भी हैं तो तुम्हारा प्रपोजल उसमें से सेलेक्ट ना हो, बिकॉज इफ़ यू डोंट रियली नो एनीवन इन द कम्युनिटी तो बहुत तुम्हारे कम चांस हो जाते हैं टू अप्लाई फॉर GSOC in that community. So the first thing is the community should be really active. The second thing is you have to see is the how many number of projects that are selected previously. ठीक है. If there are a larger number of projects that are being selected, you have a higher chance of getting selected in GSOC. After that, it would be so apart from this, I mean, so I listed down first and second, but I think the priority should be the grasp that you have in the skills that are needed in that community, right? Cool. So I mean, it shouldn't be like you have knowledge about web development and you are targeting for a company that is in Python because you know something about Python and then you decided कि चलो Python में भी try कर लेते हैं. So you should know about कि थोड़ा सा ज़्यादा कि the type of language and the type of technology stack they work in. ठीक है. That is the first filter. ठीक. उसके बाद comes कि how active that community is, then the previous number of कितने उनके projects select हुए. These are the top 3 things I would say. ओके. सो अभी बहुत सा बहुत अच्छा हो गया कि हाँ चलो कंट्रीब्यूशन कर दो हो ही जाएगा है ना जैसे है ना, बट बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इस जर्नी में. फिर जैसे जो फर्स्ट इशू आपको मिलता है ना मोहित, अब तो आप बड़े आदमी बन गए, एडमिन बन गए, हाउ डिड यू सॉल्व योर फर्स्ट इशू? See, like when we are learning anything, so क्या होता है कि when we start with a new stuff, पहले के 7-15 दिन ना बहुत मुश्किल होते हैं. Okay, when you are learning any new language, there is a like a line which you have to cross so that you are very good in that. Okay, अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस लाइन से पहले ही हार मान जाते हैं. Okay, that's why GSOC is tough. Okay, you are like working on a project which is like small with your 2-3 friends. तुमने बहुत सारा कोड बेस देखा नहीं है. So when you will like go into these organizations ना, you will see a chunk of folders. Okay, उनके अंदर कोड फाइल है because first of all you don't know structure. Okay, and you don't know stuff about it. तो होगा क्या कि पहली बात तो डर लगेगा, ये क्या, ये नहीं होगा. माइक्रोसॉफ्ट को कोड देखने जाओगे, यू कैन कंट्रीब्यूट इन माइक्रोसॉफ्ट कोड एज वेल, बट वो दिखने में ही डरावना है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. वो होता नहीं है. इट्स ओनली द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड कुछ चीज़ें नहीं आती हैं. सो हाउ शुड यू टैकल लाइक सच थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 15 दिन बिल्कुल हार नहीं माननी है. एक्चुअली 7 days, मुझे 7 दिन लगे थे कोड बेस को इन डेप्थ जाने में. माई वॉज ऑन कंपाइलर, लाइक टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर. So what you have to do is like when you will clone the project, तो पहले तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखो.
पहले अंडरस्टैंड करो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है. इट विल टेक 2-3 days. ओके, इट्स नॉट लाइक स्टार्ट कोडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल रन इट. ओके, वो रनिंग में ही प्रॉब्लम हो जाएगी. आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ लाइक Node.js. लाइक इट्स अ Node.js टुडे. तो npm स्टार्ट करने में ही वो लाइक इट विल नॉट वर्क. ओके, तो यू हैव टू सेट अप, इंस्टॉल, फिर अंडरस्टैंड करो ओके दिस इज इट्स मेन फाइल. इस मेन फाइल से इसने इसको कॉल किया है. एक बार प्रोजेक्ट का ना स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो. उसमें लगेंगे तुम्हारे को, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड, बट लेट्स से इट विल टेक 3-4-5 days. ओके, इट हैपेंस विद एनी प्रोजेक्ट. जब नई कंपनी में भी जाओगे तो उधर भी यही होता है, पहले दिन टाइम लगता है. सो टेक एज पर योर स्पीड. खुद समझो कि हाउ गुड आर यू विद दैट लैंग्वेज. दैट्स व्हाई आई सेड अ पर्सन कैन स्टार्ट इन मार्च, अ पर्सन कैन स्टार्ट इन जनवरी, अ पर्सन कैन स्टार्ट इन नवंबर एज वेल. इट डिपेंड्स अपॉन यू. अगर तुम्हें टाइम लगता है कोड समझने में तो 2 महीने का टाइम लो भाई. नवंबर से स्टार्ट करो और नवंबर से जनवरी तक आराम से लाइक कोड को समझो डिटेल में. हमारे पास 2 महीने, 2 महीने में तो पक्का समझ जाओगे. दैट्स फॉर श्योर. तो ट्राई टू रन इट एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. वंस यू हैव अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ना, यू आर 60% तुम्हारा हो गया. ओके, क्योंकि स्ट्रक्चर समझने में है. अब बाकी की चीज़ें क्या होती है, उन्होंने लाइक दे हैव यूज डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज दैट यू हैव नेवर यूज. तो सर्च अबाउट इट. तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये क्या हो रहा है, सर्च अबाउट इट. ओके, दिस इज लाइक दिस लाइब्रेरी, व्हाट इट डज, व्हाट दे आर डूइंग. मतलब जहाँ जहाँ पे कोड समझ नहीं आ रहा है उसको गूगल पे डालो, वो बता देता है कि कर क्या रहा है. तो इससे क्या होगा, कोड समझ आ जाएगा. एक बार कोड समझ आ गया, देन अंडरस्टैंड कि उनकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है. वो बोल रहे हैं कि हमारे को चैट में वी हैव टू पुट लाइक लेट्स से दे आर सेइंग वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस क्लाउड सर्विस. ओके, माय प्रोजेक्ट वाज अ नोड क्लाउड प्रोजेक्ट which is the npm library. So they said कि docker implement करना है. ठीक है, docker we have to integrate as a service in the library. तो उन्होंने Google और AWS पहले से इंटीग्रेट कर रखा था. तो मेरे को पहले Google और AWS चलाया, मैंने अंडरस्टैंड किया कि what is the code base. TypeScript compiler I have never worked. It's a compiler. वो क्या करता है, कोड अंडरस्टैंड करता है. पहले दिन तो मैं भी लाइक इट इज़ लाइक हेक्टिक हाउ आई कैन डू, बट वही होता है कि पहले 7 days, मुझे 7 दिन लगे थे. तो मैंने अंडरस्टैंड किया टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर की चीज़ें, सर्च की, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब वही गूगल सर्च. एंड वंस इन नेक्स्ट 7 days आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड ओके ये डिटेल में कुछ समझ नहीं आते, किसी को भी समझ नहीं आता है. मेंटर भी भूल जाता है कि क्या था वो कोड. सो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें सारी एक लाइन पता होनी चाहिए. यू शुड नो हाउ मच यू नीड. ओके, एंड आफ्टर दैट ट्राई टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द डॉकर. दैट इज लाइक द रिक्वायरमेंट. एंड एक बार टेस्ट करने की कोशिश करो. POC कोड, लाइक बेस्ट कोड नहीं लिखना है, जस्ट द टेस्टिंग कोड, कि बस एक बार चल जाए, तुम्हें समझ आ जाए कि मुझे करना क्या है, कि मुझे फिर तुम प्रपोजल में लिख पाओगे ना कि मैं टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का ये यूज़ करके मैं ये वाली API यूज़ करूँगा डॉकर की और फिर इसको इंटीग्रेट करूँगा. तो वो समझने के लिए एक बारी बस उस कोड को एक बारी समझो, फिर तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाएगा वंस यू आर डन. बट ये याद रखना कि पहले 15 दिन भागने की कोशिश करोगे, तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि नहीं करना, छोड़ दो, ठीक है, वो गिव अप हमेशा कर होता दो. है. दिस इज वेरी टफ, बट दैट्स नॉट द केस. व्हेन यू विल लाइक आफ्टर द 4 years व्हेन यू आर गोइंग इनटू द न्यू कंपनी, वहाँ पर भी यही होगा. तो वहाँ पे तो नहीं भागते हो तुम लोग, राइट? वहाँ पे तो काम करते हो ना. तो वही वो 15 दिन बस एक दिन लग के रहना है. समझ नहीं आएगा पहले दिन, दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन अंडरस्टैंड ओके दिस इज द स्ट्रक्चर. एंड वंस यू आर डन विद दैट, यू लाइक विल, उसके बाद सारा आसान है, प्रपोजल बनाना है. और अगर नया प्रोजेक्ट है तो बाजी तुम्हारे हाथों में है. ओल्ड प्रोजेक्ट में ये होता है, नए प्रोजेक्ट, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ टू. कि ओल्ड प्रोजेक्ट है तो समझना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट है तो तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे पास देयर इज वन प्लस पॉइंट. बट याद रखना कि नए प्रोजेक्ट में लाइक देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक लॉट ऑफ पीपल विल कम इन दैट पार्ट. तो ये याद रखना, जहाँ पे तुम्हें लगे ना कि ये आसान चीज़ है तो समझ जाना कंपटीशन है. ठीक है, जहाँ पर आसान लगे वहाँ पे समझ जाना कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं. मैंने जैसे बताया वो डेटाबेस वाला वो है, उसमें एक भी बंदा नहीं आया क्योंकि वो C++ और पता नहीं क्या कोड लिख रहे हैं और लोगों की हालत बुरी हो रही है वही देख के. तो अगर तुम उसमें अप्लाई भी कर देते ना, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे. दे वर अट्रैक्टिंग पीपल, बट कोई आने के लिए तैयार नहीं है. तुम्हारे को बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था, 1 महीना लगाकर तुम कुछ ना कुछ तो कर लेते. लाइक यू विल अंडरस्टैंड इट एंड यू विल हैव अ क्लियर कट पाथ लाइक टू द GSOC. बिटवीन में कितनी बार गिव अप किया था 15 दिन में आपने? लाइक मैंने गिव अप तो नहीं किया, सोचा
नहीं, इट वॉज लाइक टफ, बट मैं समझ गया था कि ये एडमिन बनता है इसमें मैं बताता हूँ गिव अप का सीन हमारे में होता है। लाइक सेकंड ईयर में तो ये कहते हैं ना कि क्या करेगा सेकंड ईयर में, तो सबसे ज़्यादा वो आता है कि सेकंड ईयर में क्या करेगा, 1 साल हो रहे तेरे पास, तो गिव अप के बहुत चांसेस आए। एक तो पहले आए पेपर कॉलेज के, सबसे बड़ी दिक्कत कि कॉलेज के पेपर आए वो थोड़ा था कि उस टाइम पे गिव अप कर दो, पर क्योंकि मेरे बाई चांस ये हो गया था, एक चांस हो गया था कि ऑनलाइन पेपर होगी, तो मुझे उसमें ये हो गया कि अब खाली तो हुई घर पे, तो लाइक एक कहते नहीं एम्प्टीनेस में कुछ तो करना ही है। जब मेरा ये हो गया कि चलो कुछ कर लेते, क्या पता समझ में आ जाए, तो इसलिए मेरा ये हो गया था कि प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, और मेरा नया प्रोजेक्ट था, जो मैं बता रहा हूँ कि नया प्रोजेक्ट था, तो मेरी मेंटर से पहले बात होनी स्टार्ट हो गई थी। जैसे नया प्रोजेक्ट बहुत लेट पता चलता है कि प्रोजेक्ट नया है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन जब तक रिवील नहीं करती, जब तक पता नहीं चलता कि प्रोजेक्ट नया है, तो मेरी बात स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे, तो इसलिए मुझे थोड़ा कहते नहीं हेड्सअप मिल गया था। तो यहाँ पे ये कहते तो मेरे पास ये प्लस पॉइंट मिल गया, ऑनलाइन एग्जाम की वजह से थोड़ा प्लस पॉइंट मिल गया था यहाँ पे। Pankaj, I had just two little different questions for you. कि जैसे आपने contribute किया, you're working now, and okay, so your mentor is giving you some feedback, है ना, कि आपको ये ठीक करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। So first things first, कि how do you take that feedback? And second, ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप सेकेंड ईयर कॉलेज में हो, थर्ड ईयर कॉलेज में हो, ठीक है, you're working for a open source company, okay, very big company, मैं कहूँगा कोई भी कंपनी होगी बहुत बड़ी, how can they trust you? Like how can you prove कि हाँ मैं reliable इंसान हूँ, कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ? So पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन was फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जो Feedback. फीडबैक आता है आपके राइट। पास, सो आई मीन ये फीडबैक वाला चीज़ भी इज़ हाईली रिलेटेड टू व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल ड्रॉप बीच में ही, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू रेज योर फर्स्ट पीआर, तो फीडबैक ऐसे ऐसे आएंगे कि तुम बोलोगे कि यार ये क्या बोल रहा है, ठीक है। और आई मीन इतने सारे फीडबैक आएंगे कि तुमको लगेगा कि इतने सारे अब मैं क्या करूँ, दूसरा ही उठा लेता हूँ कुछ, ठीक है। तो आई मीन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टैकल करने वाली, और इसमें कई बार तुम इसमें कुछ नहीं है, बस तुमको लगे रहना है, ठीक है। कई बार होगा कि तुमको लगेगा उस दिन कि यार ज़्यादा हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसने बोल दी, अब क्या करूँ, तो नेक्स्ट डे दोबारा से स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, उस दिन मत करो, नेक्स्ट डे स्टार्ट करो, ठीक है। और क्या होता है कि जो तुम्हारा कोड होता है व्हेन यू पीआर गेट्स इन, तो उसके अंदर मल्टीपल कोड ओनर्स होते हैं जिनके पास में मतलब जो उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड पे काम कर रखे होते हैं, और उनसे तुम्हारी पीआर जो है रिव्यू होती है, ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि मल्टीपल लोगों ने साथ में वो कर दिया कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ठीक है, इसके अंदर ये भी ठीक करो, ये भी ठीक करो। सो पहले एक चीज़ पे कंसंट्रेट करो कि पहले ये वाला पार्ट मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, अगर तुम इसको टैकल कर लोगे ना, तो तुम्हारी फर्स्ट पीआर ऐसी अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें तुमको हार नहीं मारनी है, ठीक है। एक बार तुम्हारी फर्स्ट पीआर इन चली गई, तो देन उसके बाद फिर उनको तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट आने लगता है धीरे धीरे कि इसकी 1-2 पीआर जा चुकी है अंदर, ठीक है, तो इसको हल्का बहुत आइडिया तो अब थोड़ा बहुत तो हो गई। बट इट्स नॉट लाइक कि वो तुम्हारी पीआर दिखेंगे ही नहीं, कि अगर वो उसके अंदर कुछ चीज़ें अगर हैं भी, तो वो तुमको ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे कि ये चीज़ को ठीक करो, ठीक है। तो इसको भी मतलब पॉजिटिव सेंस में लेना है, और इसमें ऐसे मतलब झगड़ने मत लग जाना उनसे उसके ऊपर कमेंट के ऊपर कि यार नहीं ये तो मैंने ठीक करा है, ये गलत कैसे हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि जो तुम्हारा रिव्यूअर होगा ना, वो उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है, रिव्यूअर्स ही तुम्हारे एडमिन्स भी होते हैं और मेंटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उनके साथ लड़ाई कर रहे हो कमेंट्स में पीआर के ऊपर, ठीक है। उसको एज अ पॉजिटिव सेंस में लो, और उनसे पूछो कि मतलब ठीक है मैंने ऐसे अप्लाई करा है, इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ, ये तुम पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये जो रिव्यूज़ है, इसी के थ्रू एक्चुअली ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर तुम जो रिव्यूज़ डाले हैं उसको ठीक करके अगर तुम्हारी नेक्स्ट पीआर जाएगी, तो अगर तुमने वो वाले चेंजेस पहले से ही अप्लाई करके रखे, इट्स नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार वो बंदा पॉइंट आउट कर रहा है तुमको कि यार हर तुम्हारी पीआर में ये चीज़ गलती है, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा ठीक करके रखना, ठीक है। तो वैसे ही धीरे धीरे और जैसी तुम्हारी मल्टीपल पीआर चेंज आएगी, वैसे ही तुम्हारा धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि दिस इज़ अ गाय की जो मतलब इशूज़ कर लेता है सॉल्व। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम बिल्कुल ही हल्के हल्के तुमने 5 इशूज़ मतलब सॉल्व करे, 5 पुल रिक्वेस्ट डाली और 5 एक ही जैसी है, ठीक है। तो मल्टीपल डोमेन्स को भी मतलब मल्टीपल चीज़ों को भी तुम टारगेट कर सकते हो। इट शुडंट बी लाइक कि ये तो बहुत हल्के हल्के इशूज़ पिक कर रहा है,
ठीक है, तो ऐसा भी होना चाहिए कि तुम थोड़ा सा एक हार्ड इशू लो, ठीक है, और उसको सॉल्व करके दिखाओ ताकि उनको लगे कि हार्ड वाला जो इशू है वो भी ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इनसे मुझे आपके सवाल था कि हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू एज एन एडमिन who's accepted the proposal to trust that person in your organization? लाइक डर तो लगता है कि ये बंदा भाग जाएगा। ये एक्चुअली एक वार्निंग भी है कि लेट्स से कि समर में चलता है ये मई जून में और तुम्हें घूमने जाना है और तुमने जीसॉक में अप्लाई कर दिया, ओके, ये गलती नहीं करना कि मैं दोनों कर लूँगा, ओके। या कभी कभी क्या होता है कि बाय चांस यू विल गेट इनटू द जीसॉक, तुमने कुछ खास कंट्रीब्यूशन किया नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया कोड का, यू मेड अ प्रपोजल, बस लोग कम थे एंड मे बी योर लक वॉज देयर, ओके, यू गॉट इनटू द जीसॉक। तो इसको लाइक बेनिफिट मत मांगना, क्यों? द थिंग इज यू कैन फेल आफ्टर गेटिंग एक्सेप्टेड इनटू जीसॉक, और वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बार ही तुमने डाल दिया कि मैं जीसॉक में एक्सेप्ट हो चुका हूँ और फिर तुम फेल हो गए, सो दैट इज़ लाइक डेडली, ओके, फॉर योर लाइफ, फॉर एवरीथिंग। कि एक होता है कि तुम एक्सेप्ट ही नहीं हुए, यू ट्राई, एक होता है एक्सेप्ट होने के बाद फेल हो गए, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। और उसमें ज़्यादा चांसेस क्या हो जाते हैं कि लाइक लोग उनका घूमने का भी था, उनकी इंटर्नशिप चल रही है, वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं, ओके, वो ड्रॉप कर रहे हैं फिर, एंड द सेम थिंग। तो ये वाली चीज़ें लाइक इफ़ यू आर वेरी ओके कि मैं कर लूँगा, 3 महीने में फ्री हूँ एंड आई एम गेटिंग इनटू द जीसॉक एंड आई हैव द कैपेबिलिटी, तभी करना। अब बात आती है कि एडमिन का क्या होता है, तो जब हम प्रपोजल सिलेक्ट करते हैं वही है कि लाइक ये सारी चीज़ें वी आर टेकिंग आउट कि प्रपोजल से समझ आ जाता है कि he will be able to do it or not, and on the past experience as well, we understand कि okay, he has like capabilities, he has done internships, so he will be trustable and he has made PRs as he said। अगर उस पर रिव्यू हो रहा है तो कितनी जल्दी रिवर्ट कर रहा है ऑन रिव्यूज, तो वो सबसे भी पता चलता है कि he is like very good and he will sustain in the project। and मोस्टली यही होता है कि आउट ऑफ ऑल द पीपल हु हैव कम, उसमें से 5 या 6 ही फेल हो जाते हैं, आधों का लाइक देयर आर सम जेन्युइन मे बी हेल्थ कंडीशन और समथिंग, बट मोस्टली यही होता है कि हमारी साइड से कि तुम्हारा प्रपोजल क्या है वो समझा देता है कि कितना है, तुमने कितना एंगेजमेंट किया, ओके, एंड एंगेजमेंट भी छोड़ दो, बाकी वर्क एक्सपीरियंस का क्या है, दैट टेक्स एन अफेक्ट ऑन अस and we decide, okay, let's say we 2 project admins decide, okay, he was good with this project, okay, इसका प्रपोजल सही लग रहा है, इसने बात भी सही से की थी and I had given him feedback, तो उसने वो किया भी, ठीक है, he looks good, so just pass it, so that's the thing। so ये बहुत सारा लाइक दिमाग में नहीं रखना कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ओके, सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट को क्लोन करना है, रन करना है और प्रपोजल बनाना है, दैट्स इट, दैट्स द की टू जीसॉक। बाकी बस ये रहना है, जैसे मैंने पहले भी कहा, हर तरीके से रेडी रहना है, प्रपोजल साइड से भी और एंगेजमेंट साइड से भी थोड़ा थोड़ा करके 1-2 मैसेजेस डाल दो, व्हेन यू विल जेन्युइनली गेट द एरर, बस काफ़ी है। मैंने इतना ज़्यादा कम्युनिटी एंगेजमेंट नहीं डाला था क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, तो क्योंकि सही बात है, ऐड करूँ फेल वाली बात पे, एक फेल वाली बात में काम करने के लिए रहते हैं, जैसे कई बार मेंटर्स भी घूमने चले जाते हैं, ये जो मेरे साथ हुआ था, मेरे सेम केस था कि जो मेरी मेंटर थी ना, वो एक तरह से एक्टिव ही नहीं थी 1-2 महीने तक, लाइक मिड टर्म एवोल्यूशन से जस्ट 1 हफ्ता पहले एक्टिव हुई, तो लाइक मेरे एकदम ही हो गई थी लाइक कि मैं फेल ना हो जाऊँ मिड टर्म एवोल्यूशन में मेरे, कि मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि काम सही कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिव्यू नहीं मिल रहा। मेन जो मेरी मेन मेंटर थे, लाइक मेरे 2 मेंटर थे, तो मुझे दूसरे मेंटर से लाइफ में थोड़ा सपोर्ट मिल गया, तो मेरा थोड़ा काम हो गया। पर एक फेल वाला क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें काम करते करते करना चाहिए, मतलब करने पे तुम्हें मजबूर करता है, लाइक कि ये क्राइटेरिया कि काम नहीं करोगे तो लाइक यू हैव चांसेस ऑफ मिड टर्म एवोल्यूशन में फेल करते हैं। फाइनल में बहुत रेयर चांसेस होते हैं फेल करते हैं, कि पता चल जाता है मिड टर्म में तक पता चल जाता है कि फेल हुआ है। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक हुआ था बंदा फेल, क्योंकि लाइक उसका मेंटर भी काम नहीं कर रहा था, लाइक मेंटर दोनों वो एक तरह से हटा दिया था, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में से मेंटर भी हटा दिया था जब उस टाइम पे, और कंट्रीब्यूटर भी हटा दिया था, क्योंकि दोनों कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन एडमिन को, और लाइक कुछ काम भी पता नहीं चल रहा था उनकी रिपोर्ट से। तो एक ये केस हो जाता है कि तुम्हें फेल पे तुम्हें अपने मेंटर से थोड़ा कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है इस टाइम पे, फेल ना हो जो लाइक काम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तुम रिपोर्ट देते रहो हर हफ्ते जो मेंटर को अपना। एक मिनट राइट, इसमें कई बार तुम्हारा क्या होता है फेलिंग क्राइटेरिया, कोई थोड़ा सा और कर देते हैं एक्सप्लेन। सो
कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर तुमने मतलब फर्स्ट तुम्हारा माइलस्टोन पूरा हो गया है और सेकंड माइलस्टोन तुम्हारा पूरा नहीं हो पाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम फेल हो जाओगे। तो तुमको उस केसेस में क्या होता है कि अपने मेंटर से या जीसॉक एडमिन से बात करनी होती है कि ये रीजंस थे जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया, एंड देन दे मतलब वो कर देते हैं कि तुमने इतना कंप्लीट कर दिया है, कोई बात नहीं, और कुछ रीजंस की वजह से पूरा नहीं हो पाया। सो यू हैव टू मेंटेन अ कम्युनिकेशन इन केस कि तुम्हारा अगर पूरा नहीं हो पा रहा है कुछ रीज़न की वजह से। इट्स नॉट लाइक कि तुम आखिर दिन जाके बोल रहे हो कि यार मैं तो यहाँ स्टक हो गया था और इसकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। तो कम्युनिकेशन पहले ही हो जानी चाहिए। एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है व्हेन यू सबमिट योर प्रपोजल, ठीक है। तो प्रपोजल में भी काफ़ी सारे तुम्हारे लूप होल्स होते हैं, ठीक है। तो उनको पहले ही क्लियर करवा लेना चाहिए। जब तुम्हारा कोडिंग पीरियड स्टार्ट होता है उससे पहले यू हैव टू गेट अ फीडबैक फ्रॉम योर मेंटर। और कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड होता है। हाँ राइट, कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में जो होता है ना, तो उसमें पहले जितने भी तुम्हारे लूप उसके अंदर से जहाँ पे तुम्हारा स्टक हो सकता है प्रोजेक्ट, उस चीज़ को पहले ही क्लियर कर लो, ठीक है। और उनको सॉर्ट आउट कर लो पहले, बिकॉज इन्हीं रीजंस की वजह से कई बार जो है आगे जाके प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, ठीक। टाइमलाइन वाली बात आ रही है, जो टाइमलाइन के जैसे टाइमलाइन तुम्हारी बहुत बार चेंज होने के चांसेस होते हैं। लाइक तुमने कुछ सबमिट कर दिया और तुम्हें बाद में थोड़ा प्रोजेक्ट का आइडिया लगा कि लाइक ये सबमिट पॉसिबल ही नहीं है, पर तुम्हें कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में आइडिया लग जाता है। तुम अगर अपने मेंटर्स वगैरह से बात करते हो ना, तो तुम्हें इसमें आइडिया लग जाता है कि तुम्हें ये चीज़ हो सकती है, तो तुम्हें वो टाइमलाइन कहते हैं कि चेंज करके अल्टर करके दे दो। जैसे ये होता है कि चेंजेस जो मतलब कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि मतलब फीडबैक फॉर्म में तुम ये कर सकते हो। ओके, अच्छा इसके अंदर तुम एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम दिस फेल होने वाला चीज़, जैसे मैंने क्या किया था, प्रोजेक्ट जो चूज़ करने वाला पार्ट है ना, तो उसमें मैंने सबसे जो हार्डेस्ट वाला प्रोजेक्ट था वो चूज़ किया था। बिकॉज कि वहाँ पे क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ पीपल है, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस कि यार मेरे को इस कोड बेस के बारे में पता है और जितना मेरे को पता है वो बाकी उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यू कैन चूज़ द हार्डेस्ट प्रोजेक्ट जो कि तुमको वहाँ पे मिल रहा है, और वहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया मतलब सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है और तुम फिर हार्डेस्ट ले रहे हो। तो सेम राइट, मैंने जैसे पहले ही बोला कि अगर इजी प्रोजेक्ट है तो तैयार रहना कि कंपटीशन बहुत है। हार्डेस्ट लोगे तो 80% चांसेस है कि यू विल गेट इनटू द जीसॉक। जैसे लाइक मैंने भी हार्डेस्ट ही लिया था, उसमें टाइप कंपाइलर वाला पार्ट था तो लोग भागते ही हैं। तो आई हैड लाइक 80% बिलीव ऑन माई सेल्फ कि आई विल गेट इनटू इट, ओके। सो दैट्स द थिंग कि वही है कि थोड़ा भेड़ चाल से अलग चल के जो चीज़ है उसको करो तो यू विल गेट सक्सीडेड लाइक इन दैट पार्ट। राइट। Another new thing, self confidence भी important होता है ना, तो भरोसा रखो कि आती है भाई। मेन तो वही है। हाँ, वही बात है, गिव अप वाली बात है, गिव अप नहीं करना लास्ट तक, प्रपोजल बनाने तक तो। ओके, सो जैसे you know you three have had exposure in international companies है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, तो ये भी हो सकता है कि आपके जो मेंटर है वो इंटरनेशनली प्लेस्ड हो, या अगर आप मेंटर तो आपकी जो मेंटी है वो कहीं और हो। सो हाउ डू यू मैनेज दैट फीडबैक लूप, और वो जो टाइम जोन का डिफरेंस है, हाउ डू यू मैनेज दैट, लाइक आई मीन कैसे करते हो आप? निशांत? मेरे में तो ये था लाइक प्रॉपर ऐसा होता था कि वो बिल्कुल एट अ नाइट होता था, तो मेरा बिल्कुल लाइक सुबह सुबह 4 बजे उठता था मैं, जो मेरी मीटिंग्स होती थी सुबह सुबह 4 बजे होती थी। पर लाइक ये हो जाता है सेटल, क्योंकि ज़्यादातर ना मेंटर्स ज़्यादातर चैट ही रखते हैं, मीटिंग्स ऐसा एक्सट्रीम मोमेंट पे रखते हैं। मेरे जो मेंटर से बिल्कुल ऐसा था कि एक्सट्रीम मोमेंट हो गया, जैसे या तो एवोल्यूशन से पहले रखते थे तो मीटिंग, या जो बिल्कुल जहाँ पे मैं स्टक हो गया जब रखते थे। वरना ज़्यादातर हमारी चैट पे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, लाइक रिप्लाई इन अ डे, तो मुझे उसमें इतनी दिक्कत नहीं आई मेनली तो। और तो वही जो मैं कह रहा हूँ कि लाइक मेरी मेंटर घूमने चली गई तो मुझे उसमें थोड़ा लूप हो गया था, दिक्कत हुई थी। पर बाद में अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन एडमिन थोड़ा बात कर लेता है तो उसमें वो सेटलमेंट हो जाती है। तो मेनली चैट पे ही रखते हैं वो ज़्यादातर। मैंने ये देखा कि मेंटर्स वगैरह ज़्यादातर चैट पे रखते हैं, मीटिंग लाइक एवोल्यूशन क्राइटेरिया पे रखते हैं, या कोई तुम एकदम स्टक हो गए जब रखते हैं। मोहित, अगर आप किसी को डांट मारनी हो तो आप क्या रखते हो, चैट पे करते हो या डू यू कॉल अ मीटिंग, व्हाट डू यू डू? लाइक ऐसे डांटते तो नहीं है, वी डोंट हैव टू लाइक उसको डरा देना है व्हेन ही इज लाइक एज अ पार्ट, लाइक व्हेन ही इज एज अ पार्ट ऑफ द जीसॉक एंड कोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। पहली बात तो यही होता है कि हाँ कभी कभी टाइम डिफरेंसेस होते हैं,
तो कभी कभी 8 बजे भी उठना पड़ता है सुबह सुबह, तो उसके लिए भी रेडी रहना। ओके, 6 बजे भी उठना पड़ सकता है। 4 बजे उठ रहा इफ लाइक ऑल द मेंटर्स आर फ्रॉम 6 AM, तो उठना पड़ेगा मीटिंग के लिए। एंड दे सम ऑर्गेनाइजेशन सेट अप वीकली मीटिंग, सम सेट अप लाइक every after 2 days. Okay, that depends upon organization to organization. तो बात आती है डांटने पे, तो लाइक इफ somebody is doing wrong तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, बट अगर मान लो कि he is like totally out of the path, he is not doing that stuff, so there is a warning कि there is midterm evaluation coming, तो उसका like if he is totally out of the path, if he is not responding और चैट पे तो डांट लगाते ही है। उसके बाद वो होता है एक्सट्रीम केसेस में, जो लाइक लिटरली आउट ऑफ उसमें चला गया। वैसे ऐसे केसेस बहुत ही कम आते हैं। जो जीसॉक में आ गया वो बहुत ही लाइक खुद ही बहुत ही वो सिंसियर होता है कि मैं बस पास हो जाऊँ, मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाए। सो या अगर तुम लाइक हरकतें करोगे तो देन यू विल फेस द प्रॉब्लम्स इन द मिड टर्म इवैल्यूएशंस एंड फाइनल। टाइम जोन्स का तो इट्स लाइक कि जब तुमको क्वेश्चन आएगा ना व्हेन यू आर स्टक, तो तुम रात को 2 बजे भी जग के तुम पूछने की कोशिश करोगे, बिकॉज यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स, जैसे मेरे थे वो यूएस बेस्ड थे सारे, ठीक है, तो वो रात को 2-3 बजे ही एक्टिव होते थे। तो व्हेन यू हैव टू आस्क, तो और ऐसा भी नहीं कि चैट फिर मैंने कुछ लिखा तो फिर कल रिप्लाई आया तो मैंने फिर परसों, तो ऐसा नहीं चलता ना, बिकॉज वो चीज़ तुमको जल्दी सॉर्ट आउट करनी है। इट्स नॉट लाइक कि तुम 3-4 दिन तक सेम चैट चला रहे हो, तो वो तो तुम्हारे ऊपर ही है। अगर तुमको जल्दी रिजॉल्व करना है तो जल्दी रिजॉल्व करो, रात तक जगो और अपना रिजॉल्व करो। सो जीसॉक का एक बहुत बड़ी हाईलाइट होती है, वो स्टाइपेंड मिलता है ना। नॉट द प्राइमरी थिंग, ऐसा भी नहीं होता, एक हाईलाइट बहुत होती है। सो अपार्ट फ्रॉम द स्टाइपेंड, आप लोगों की इंडिविजुअली क्या टेक अवे थे फ्रॉम जीसॉक? पंकज? मेरा तो इट्स लाइक बिकॉज सो अभी मैं बता दूँ, जीसॉक स्टार्ट होने से पहले भी आई वॉज लाइक एज आई मैंशन कि मैंने 2 प्रोजेक्ट्स पहले ही कर लिए थे उससे पहले। एंड अभी भी जीसॉक ख़त्म होने के बाद भी आई एम लाइक मैं टीम लीड हूँ अभी वहाँ पर, प्रोजेक्ट लीड भी हूँ वहाँ पे उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। और अब मैं रिव्यू भी करता हूँ कोर्स जो नए कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके। तो क्या होता है कि जीसॉक ख़त्म भी हो जाए तो एक बॉन्डिंग हो जाती है कम्युनिटी के साथ में, ठीक है, एंड दैट बॉन्डिंग स्टेज। इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त बन गया तो ऐसा तो नहीं है कि कल तुम दूसरी सिटी में चले गए तो उसके साथ दोस्ती छोड़ दोगे, राइट। तो इट्स द सेम, मतलब जीसॉक व्हेन तुम एक बार जीसॉक में सिलेक्ट हो गए ना, तो फिर वो नहीं रहता, एयर नहीं रहता जीसॉक वाला कि जीसॉक इज़ अ बिग थिंग। उसके बाद फिर यू ट्राई टू लर्न एंड यू ट्राई टू ग्रैस्प न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। द अदर थिंग इज़ कि जो तुम्हारे मेंटर्स होते हैं या जो जीसॉक एडमिन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेप्यूटेड कंपनीज में होते हैं। सो उनसे तुम रेफरल्स वगैरह ले सकते हो, दे देते हैं बहुत आराम से, आराम से दे देते हैं। आराम से they sometime offer the internship, like I got an offer. Right. So that is the second thing. Other thing can be तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे काफ़ी ठीक हो जाते हैं। लाइक इनिशियली मैंने मेंशन किया था कि इट्स नॉट रियली कॉमन कि तुम मेल्स डाल रहे हो हर दूसरे दिन किसी बंदे को, बट ड्यूरिंग द जीसॉक पीरियड या फिर अगर तुम ओपन सोर्स में हो भी, तो एक जो मेल लिखने का है ना कि कैसे मेल लिखते हैं वो तुमको आ जाता है, ठीक है, या फिर कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं किसी नए पर्सन के साथ में, वो तुमको एक चीज़ आ जाती है, नई चीज़ तुम सीख लेते हो। फिर होता है तुम्हारा, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा है कि तुमको मल्टीपल टीम्स के साथ कोलैबोरेट करना है, जैसे मेरा था वो एक पूरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट था, तो आई हैड टू कम्युनिकेट विद द डिज़ाइन टीम, फिर जो मार्केटिंग टीम है उसके साथ भी था, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है हमारा उसके साथ भी है कि कहीं मेरा गलत तो नहीं बन रहा प्रोजेक्ट, ठीक है, या एंड यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स क्या थी। तो वो टीम के साथ, तो मल्टीपल टीम्स के साथ जो कोलैबोरेशन है, दैट इज़ समथिंग दैट यू लर्न, ठीक है, और वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ही तुम सीख सकते हो, वो छोटे वो स्टार्टअप्स में तुम सीख नहीं सकते, ठीक है। सो दीज आर द की टेकअवेज। मोहित, अभी आपने मेंशन किया था ना कि आपने एक बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट लिया था, है ना, जहाँ पर कंपटीशन वैसे ही नहीं है, यू हैव टू गुड स्किल सेट। सो आफ्टर यू वर डन विद योर जीसॉक, डिड यू फील एनी कि नाउ आई नो दिस एरिया ऑफ कोडिंग बेटर और आई नो दिस लैंग्वेज बेटर, तो अपने स्किल सेट में कोई फर्क देखा?
यस लाइक जीसॉक का तो फ़ायदा होता ही, मैंने पहले भी कहा कि लाइक यू गेन स्किल्स. मैं लाइक आफ्टर दैट जीसॉक पीरियड आई वाज लाइक वेरी गुड विद टेस्टिंग, क्योंकि टेस्ट लिखने पड़ते हैं, सिर्फ कोड ही नहीं करना होता है. सो आई वाज वेरी गुड विद टेस्टिंग एंड आई वाज गुड विद नोड एंड जावास्क्रिप्ट एंड ऑल दैट पार्ट. नाउ आई वाज लाइक एक्सपर्ट इन दैट पार्ट बिकॉज मैंने तो कंपाइलर के साथ ही डील कर लिया लाइक चेंजिंग स्टफ. तो जीसॉक के मोस्टली प्रोजेक्ट्स ऐसे ही होते हैं कि यू विल गेट टू, अब सी प्लस प्लस का जब प्रोजेक्ट उठाओगे तो यू विल गेट हाउ टू बिल्ड द रियल एप्लीकेशन इन सी प्लस प्लस. पहले तो तुम लोग DSA वाली कोडिंग करते हो, नॉर्मल सी आउट सी इन वो सब, बट एक बार तुम इफ यू आर डूइंग लाइक दैट इन द जीसॉक, so there you have to use libraries, make import of libraries and all that, so you will get in there. Same way if you are in Python, तो Python के अंदर अच्छा Python का कोड कैसे लिखना है, decorators and all that stuff, the powerful stuff you will get into that. If you are working in React or Flutter, then you will get understand React को, मतलब उसमें वो normal components वो नहीं बनाने होते, you have to make good kind of components in that, and in Flutter how to use the libraries correct way, how to make it fast, वो सब सीखते हो. एंड बस यही है लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू टॉक अबाउट टेक अवेज, तो ऑफकोर्स तुम्हारे पास एक टैगलाइन आ जाएगी जीसॉक, और इसका फ़ायदा तो होता ही है. ओके, इट्स अ मेजर अचीवमेंट. तो एक होता है कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू गुड कंपनीज, अगर फैंग में जाना चाहते हो तो DSA करना है, ठीक है. अगर डेवलपमेंट वाली बिग कंपनीज में जाना चाहते हो, क्रेड्स, स्विगी और इन सब में, या किसी भी लाइक जो हाई पेइंग है, तो इफ़ यू हैव अ जीसॉक टैग यू हैव एन अपर एज ऑन दैट पार्ट. और वो खुद भी लिखते हैं. क्रेड ने तो बस सीधे सीधे लिखा था, आई थिंक इट वॉज क्रेड ओनली, कि उसने लिख दिया था कि जीसॉक विल बी गिवन द प्रेफरेंस, जिन्होंने जीसॉक का रखा है. सो इफ़ यू हैव दैट टैग लाइन, तो अगर अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं है तो तुम्हारे प्रोफाइल पे एक बहुत अच्छा अचीवमेंट आ गया. जैसे होता है ना लीड कोड में मैंने 600 क्वेश्चन कर लिए, ये वैसी बात होगी कि डेवलपमेंट में मैंने जीसॉक कर लिया. या बस यही नहीं है, मैं बोलूँगा इन ऑल टर्म्स ओपन सोर्स का बड़ा फ़ायदा है. मैं बस यही बोलता हूँ कि लाइक जैसे थर्ड ईयर में इफ़ यू आर टैकलिंग जीसॉक, ठीक है, इफ़ यू आर टारगेटिंग जीसॉक एज अचीवमेंट, उससे पहले अब MLH है, MLH फेलोशिप, वो भी एक बहुत अच्छा केस है. तो पहले उससे स्टार्ट करो. MLH फेलोशिप हो गया. अगर कोई ब्लॉकचेन के अंदर है, आई एम इनटू द ब्लॉकचेन स्पेस, सो उसमें समर ऑफ बिटकॉइन है, ठीक है. और यूनिवर्सिटीज़ के लाइक भी बहुत सारे निकलते हैं, जैसे डेल्टा विंटर ऑफ कोड, विंटर ऑफ कोड, आजकल चल रहे हैं वो सबके सब. समर ऑफ डॉक्स भी हो गया डॉक्यूमेंटेशन के लिए. हाँ, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए समर ऑफ जैसे डॉक्स. कोई और non-tech ऐसे अभी कॉलेज लेवल पे भी बहुत सारे देयर आर लाइक प्रोग्राम्स कमिंग. तो फर्स्ट ईयर से पहले वहाँ से शुरू करो, ठीक है. पहले उनमें कंट्रीब्यूट करो, गिट समझ जाओगे गिट कैसे करना है. गो स्टेप बाय स्टेप एंड लाइक मजे लो इस पूरे पाथ के. ये नहीं है कि सीधा टेंशन डाल दिया. वो मैं बोला 12th का बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है, ही इज लाइक गेटिंग इनटू कॉलेज एंड ही इज आस्किंग मी आई वांट टू क्रैक द जीसॉक. सो मैंने बोला भाई लैंग्वेजेस कौन सी आ रही है, मतलब नो लैंग्वेजेस. मैंने बोला भाई पहले लैंग्वेज तो सीख लो, पहले थोड़े आराम से पढ़ लो, मजे लो, रिएक्ट के मजे लो, नोड के मजे लो, क्लाउड के मजे लो, एंड देन गो स्टेप बाय स्टेप. पहले मैंने ऐसे ही किया था. लाइक इन फर्स्ट ईयर आई वाज इनटू मल्टीपल ओपन सोर्स प्रोग्राम्स. Okay, I want to experience everything. So the main focus should be on experience, not on some like. So I did like multiple open source programs, and then in that year, like then I became admin in like those college level open source programs, and then it was GSOC time, summer of Bitcoin time. और अगर तुम open source कर रहे हो ना, so company reach out to you directly. मेरे को अभी तक कंपनीज ने GitHub से reach out किया. I have never reached out to company and I can bet about that. Okay, so they reach out to you through your GitHub. I don't know like how they reach. Okay, एक दो companies like not एक दो बहुत सारे, and when you will post on like LinkedIn, so then you will get a lot of messages. Okay, we want to hire you and we want to do that. So there are like lot of benefits from the career perspective. So in whole open source actually, वो एक और भी है. I think that's like Linux Foundation. तो उसका भी फायदा है. पर आधे लोग क्या करते हैं, पहले Linux Foundation के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, that matches with GSOC, ठीक है. तो if you can first target Linux Foundation. बहुत कम बच्चे उसको टारगेट करते हैं, और भी ओपन सोर्स के Linux Foundation को टारगेट करो and then go into the GSOC. अगर तुमने वहाँ पे on Linux मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में किया which is a part of GSOC, so you will get in both.
ओके, और सेम प्रोजेक्ट है, कितना आसान है तुम्हारे लिए। वही बोल तो रहे हैं। सीधे उधर ही जंप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप लैडर चलो एंड जस्ट गेट इनटू द GSOC फॉर लाइक आउटरीच इज देयर फॉर गर्ल्स, उनके लिए तो और भी एक सेम ऑर्गेनाइजेशन। गर्ल्स स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड, अगर हाँ। किसी को बिल्कुल ओपन सोर्स में बिल्कुल नहीं हुआ है ना, हाँ। वो थोड़ा मैन लाइक वो सबको सिलेक्ट करते हैं गर्ल्स स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड, तो उसमें जा सकते हो। अभी जैसे विंटर में शायद होता है वो, मुझे याद नहीं, पर समर में तो मेन होता है। वेंडर ऑफ कोड। हाँ, तो उसका थोड़ा रहता है कि लाइक अगर जाना हो तो मतलब आउटरीच ही तो अगर तुमको कोडिंग पसंद नहीं है, कोडिंग नहीं करनी है, तो आउटरीच ही में जाओ। आउटरीच इज़ फॉर एवरी डोमेन। वहाँ पे हर डोमेन के रिसर्चर्स आते हैं, वहाँ पे कंटेंट राइटर्स आते हैं, वहाँ पे डिज़ाइनर्स आते हैं, और अगर तुमको सही में इफ़ मनी मैटर्स तो ज़्यादा पैसा देते हैं GSOC से, ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए सही तो वो भी है समर ऑफ डॉग्स, वो मुझे लगता है कि लाइक जैसे अभी लास्ट बात हुई थी कि समर ऑफ डॉग्स सबसे ज़्यादा देखता है शायद ओवरऑल सब में से। 5,000 6,000 सबसे 6,000 is Summer of $6,000 is for outreach as well. आउटरीच। Okay. Prashant, what was your takeaway from GSOC? मेरा तो जैसे ये था बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट था, तो इतनी वो हो गया कि इस प्रोजेक्ट को मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा ही प्रोजेक्ट हो गया, बिल्कुल ऐसी बॉन्डिंग हो गई इस प्रोजेक्ट की। लाइक मैंने जैसे प्लेसमेंट्स आ गई थी, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा ओपन सोर्स थोड़ा कम कर दूँ, लाइक थोड़ा DSA की थोड़ी DSA साइड चला जाऊँ। लाइक कॉलेज में तो होता है कि थोड़ा DSA को भी कर लो कवर, तो मैंने ये सोचा था प्रोजेक्ट छोड़ दूँ, पर लाइक मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, पर प्रोजेक्ट नहीं छोड़ पाया कि मुझे कहीं ना कहीं से इश्यूज आते रहे। लाइक लिंक्डइन पे मुझे मैसेज आ गया कि मैंने इसमें ये काम करा है कि आप चेक कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, तो प्रोजेक्ट के साथ तो ऐसी बॉन्डिंग सी हो गई थी मेरी इसमें तो। और लाइक मुझे और भी बेनिफिट्स हुए, लाइक जैसे जो मेरा मेंटर था, मैं एटा में था, तो ही ऑफर में इंटर्नशिप, लाइक कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो, लाइक कि बस आप मुझे लाइक ही ऑफर में इंटर्नशिप, बट ही वांटेड थर्ड ईयर, he told me like I'm the third year, so he offered me that can be the good offers like you can get from the GSOC। हाँ MLH फेलोशिप में भी अगर मेटा में करोगे तो उसमें एक अपर हाँ मिलता है। MLH पर ही थोड़ा सा MLH मुझे ये लगता है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, MLH ये माना या MLH फेलोशिप इज थोड़ा स्ट्रिक्ट बेसिस। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइक पंगा करते हैं। हाँ कि मतलब उनको ना प्रॉपर टाइमिंग चाहिए, तुम क्या क्या कर रहे हो, एक एक घंटे की तुम्हें उनको वैल्यू चाहिए जो तुम कर रहे इफ यू आर लाइक थ्रू द MLH फेलोशिप तो उसमें मिलता है, और आई थिंक गूगल भी पता नहीं देता है। हो। GSOC का प्रेफर कैंडिडेट GSOC का प्रेफर कैंडिडेट वो देता है, लाइक तुम्हारी इंटर्नशिप इजीली हो जाता है, सिलेक्शन इजीली हो जाता है बट रिज्यूमे, अगेन DSA चाहिए उसमें DSA चाहिए, पर दिक्कत ये है। अगर मान लो तुमने रिज्यूम में तुम्हारा DSA बहुत अच्छा है और तुमने GSOC का रखा है तो बहुत ही हाई प्रेफरेंस चला जाएगा। ओके, सो दे आस्क यू टू फिल अ गूगल फॉर्म वेयर यू हैव टू पुट द इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू हैव डन GSOC। अभी जैसे GSOC अभी निकली थी गूगल की इंटर्नशिप, मैंने किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी DSA रह गई, लाइक मैं कह रहा हूँ ना DSA साइड रह गया मेरा, तो दैट्स वाई कि मतलब वहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है कि तुम थोड़ी DSA भी साइड बाय साइड, अब मैं इसलिए थोड़ी DSA साइड जा रहा हूँ ओपन सोर्स को छोड़ के। देयर इज आल्सो GitHub एक्सटर्नशिप। हाँ अभी नहीं है सच वो में, last year ही उसमें भी last लाइक year बट ही। डायरेक्ट ऑफर्स मिलते हैं। जैसे उसमें भारत एक्स आया था, आई वाज आल्सो इनटू GitHub एक्सटर्नशिप, तो उसमें भारत एक्स आया था, सो डायरेक्ट लाइक 30-40 lakhs ऑफर जो उसमें करें। ओके, दैट्स आल्सो एन ओपन सोर्स काइंड ऑफ स्टफ, वो भी ओपन सोर्स है, उसका नाम है GitHub एक्सटेंशन रखा है। एंड अब देयर इज लाइक अ कोलैबोरेशन विद GitHub एंड दैट, तो उसमें GitHub का तो टैगलाइन है ही, जैसे इसमें गूगल का है उसमें GitHub का है। एंड यू विल गेट लाइक उसमें जो कंपनीज आती है वो हायर करने के हिसाब से आती है, तो उसको टारगेट करो। उधर भी इतनी लाइक सिर्फ यही नहीं है, GSOC अकेला नहीं है, आई एम सेइंग इन टेक अवेज फ्रॉम ओपन सोर्सेज अलॉट, बट स्टूडेंट्स डजंट नो अबाउट ऑल दिस स्टफ, वो अभी उसी में चले गए कि GSOC ही थोड़ा दिखता है, में ही जाना है, हाँ उसमें ही जाना कहते हैं है। लिंक्डइन पे बहुत GSOC सारे- अलग से दिखता है लिंक्डइन पे दिखता है GSOC अलग से। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे जैसे मैं ऐसे अट्रैक्ट हुआ था GSOC से, पर मतलब मैंने MLH के बारे में एक्सप्लोर कर लिया था जब तक, तो मुझे सबका आइडिया था उस टाइम तक, पर एक अट्रैक्शन होती है गूगल का नाम, वो कहते नहीं गूगल है सब सारा, वही अट्रैक्ट करता है। Right. So, आपने भी कहा था कि आपका सिलेक्शन हो भी जाए, इवैल्यूएशन में फेल कर देते हैं, है ना? ये इवैल्यूएशंस क्या होते हैं, जरा थोड़ा सा ब्रीफ में। सो बेसिकली एक मिड एवैल्यूएशन होता है, एक फाइनल एवैल्यूएशन होता है। अब थोड़ा और भी चेंज हो गया है क्योंकि प्रोजेक्ट की डेडलाइंस भी बढ़ गई हैं। मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट व्हिच गोज ऑन लाइक यूजुअल, आई डोंट नो हाउ 20 to 24 weeks जो एक वीक्स का होता है 24 वीक्स। देन देयर आर लाइक वेरी बिग प्रोजेक्ट्स। ये गूगल ने पिछले साल से इंट्रोड्यूस किया है कि और भी बड़े प्रोजेक्ट्स जो 24 वीक्स के
बियॉन्ड जाते हैं तो नवंबर तक चलते हैं। तो मैं मेरा वो लास्ट प्रोजेक्ट था। सो आई विल जस्ट फोकस ऑन 24 वीक्स वाला जो मेन है, जो सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि उसमें भी वही है इवैल्यूएशन, देयर इज अनदर इवैल्यूएशन इन दैट एंड मोर स्टाइपेंड, सो दैट्स द ओनली Double the stipend. डबल द स्टाइपेंड। तो इवैल्यूएशन तो यही है कि यू आर डूइंग लाइक फॉर व्हेन यू आर गेटिंग इनटू द जीसॉक, जैसी कम्युनिटी बॉन्डिंग हो गई, अब तुम्हारा कोडिंग स्टार्ट हो गया, हर हफ्ते मीटिंग्स करेंगे हम या चैट पे देखेंगे अच्छा कितना हो गया, तुमने एक टाइमलाइन भी बनाई होगी ना, तो इसलिए लाइक वो प्रपोजल से समझ आता है कि कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि टाइमलाइन भी तुम्हें डिफाइन करनी होती है। अब तुम टाइमलाइन बोलोगे मैं 2 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा चैट का सिस्टम बना दूंगा, दैट मीन्स यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। चैट विल टेक एटलीस्ट 2 वीक्स एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो वही है, तुमने टाइमलाइन दे रखी होगी, टाइमलाइन बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि वो उसी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ऑफ कोर्स देयर वुड बी एन अप एंड डाउन ऑफ, यू कैन थिंक अ मैक्स ऑफ 1 वीक, एक हफ्ते का ऊपर नीचे कर सकते हो, बट टाइमलाइन के हिसाब से भी एनालाइज, ठीक है। तो आप हर हफ्ते ओके यू आर गेटिंग स्टक, देन वी आर सॉल्विंग मेंटर्स एंड यू आर सॉल्विंग टुगेदर। अब बात आती है कि अब जैसे मिड वैल्यूएशन आएगा तो माइलस्टोन्स कंप्लीट होने चाहिए। मे बी यू हैव ड्रॉप्ड 1 माइलस्टोन, दैट्स फाइन, बट मान लो कि लाइक तुम्हारे को लाइक चैट का आधा फीचर इम्प्लीमेंट करना था, ओके, विद ऑल डॉक्स एंड यू आर जस्ट ऑन स्टार्टिंग पार्ट, ओके, देन वी एनालाइज कि क्या तुम ये अगले रेस्ट ऑफ द जो टाइमलाइन बची है उसमें कर पाओगे, एंड इफ वी थिंक यू आर नॉट एबल टू डू दैट, ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन यू एज अ पर्सन एज वेल, कि पिछले 4 हफ्तों 5 हफ्तों से तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, यू डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, एंड इफ वी सी कि नो यू आर नॉट एबल टू डू इट, then the org decides to fail you, and that is in the mid balance. But ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ओके, एंड कभी कभी मेंटर की भी गलती होती है कि मेंटर नहीं समझा पा रहे हैं उसे, ओके, तो यू हैव टू ऑल्सो, देयर इज अ लाइक दे विल आस्क यू कि देयर इज एनी प्रॉब्लम, यू जस्ट हैव टू टेल द ऑर्ग एडमिन, जो ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन है उसको बोल दो कि मेंटर ने हेल्प नहीं की, वो सही से बता नहीं रहा है, तो बट दैट इज ऑन द रेयर केसेस। But you have to be very strict with like all the timeline, okay? अगर तुम्हारे को अच्छे से आता है तो तुम आराम से कर लोगे, बट वही है कि अगर तुमने इतना मुश्किल काम ले लिया जो कभी किया ही नहीं और गलती से तुम चले गए हो, तो मे भी तुम जीसॉक कर लोगे, लेकिन वो पूरे 3 महीने का दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो अगर मज़े से जीसॉक का पीरियड निकालना है तो अपने हिसाब से, दैट्स वाई वी से लाइक अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि क्या स्किल सेट है, और मतलब वही है कि C++ जिंदगी में कभी की नहीं और तुमने C++ का प्रोजेक्ट उठा लिया और गलती से चले गए, सो देन देयर इज लाइक यू आर गॉन, बट मे बी यू आर वेरी कैपेबल, तुमने 1 महीने में सारा C++ पढ़ लिया, दैट्स अ डिफरेंट चीज़। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो नॉर्मल पीपल है, एवरेज पीपल, और उनको C++ आता नहीं है, उधर कोई भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन तुम बस किसी तरह तुमने ब्लफ कर दिया, यू आर वेरी ग्रेट एट राइटिंग प्रपोजल्स, तुमने सारा लाइक कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके दिमाग लगा के एंड यू गॉट इनटू द जीसॉक, बट उसके बाद में फिर नहीं छूटेगा, लाइक यू आर गॉन, और जैसे मैंने बताया दैट्स अ डेडली थिंग। राइट। सो निशांत, मेरे साथ जो रेयर केस नहीं हुआ, जो मेंटर की गलती थी, मेरे साथ वही रेयर केस हुआ था कि लाइक मेंटर थोड़ा जवाब नहीं देता, तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन एडमिन से बात वगैरह करनी स्टार्ट कर दी थी। तो एवरेज में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, ज़्यादा टेंशन नहीं होती, मेनली जो तुम टाइमलाइन हो रहे हो फॉलो करते रहो, उसका सब काम होता रहता है। ऐसा कोई केस आज तक बना नहीं मेरे साथ, लाइक बहुत रेयर केसेस होंगे जिसमें तो अगर तुमने काम ही ऐसे ले लिया, जैसे अब मान लो तुमने AI तुमने कभी पढ़ी नहीं, AI का मॉडल बनाना, तुमने AI मॉडल का काम ले लिया तो तुम कभी कर ही नहीं पाओगे, पाइथन का तुम्हें पता नहीं कुछ भी, तो वो दिक्कत उसमें ही आ जाती है। और कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड आता है सबसे पहले, तो उससे पहले उसमें ही तुम्हें पता चल जाता है कि तुम कैसे काम कर पाओगे, तुम्हारी टाइमलाइन सारी अल्टर हो जाती है जब तक, क्या क्या करना है तुम्हें जब तक। और मेरे हिसाब से आज तक मिड टर्म एवोल्यूशन में ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं होगी, अगर तुम्हारी टाइमलाइन प्रॉपर सही चल रही है तो तुम्हें सही। और लास्ट तक तो ऐसा हो जाता है, जो लास्ट वाले इवोल्यूशन है तो तुम खुद मेंटर कर रहे हो, नए कंट्रीब्यूटर जब तक आने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे, तो मेरे तो ये हुआ था कि लाइक हैक अक्टूबर आ रहा था तो न्यू आ रहे थे कंट्रीब्यूटर्स, तो मैं तो उनको बताने स्टार्ट कर दिया था, डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी था, तो मेरा 1 हफ्ता खाली था तो मैंने यही करना स्टार्ट कर दिया उस टाइम पे। राइट। पंकज, अभी हमें पता चला कि आपने बड़ा प्रोजेक्ट लिया था, सो यू गॉट एन एक्सटेंशन, डबल द स्टाइपेंड, तो ये हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर द इवैल्यूएशन? सो आई थिंक यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो तुम्हारा मीडियम प्रोजेक्ट होता है और एक लार्ज प्रोजेक्ट जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है।
सो मीडियम प्रोजेक्ट वाज लाइक वो तुम्हारा एंड हो जाता है सितंबर में, आई गेस सितंबर में। हाँ September मीडियम last प्रोजेक्ट तक। तुम्हारा सितंबर के लास्ट तक एंड हो जाता है, और जो तुम्हारा लास्ट प्रोजेक्ट होता है इट कैन कंटिन्यू टू नवंबर। बट इसमें भी जो तुम्हारा टाइम शेड्यूल होता है दैट डिपेंड्स ऑन यू। यू कैन डू द होल लास्ट प्रोजेक्ट टिल सितंबर। लाइक जो मैंने पहली अपनी बनाई थी टाइमलाइन, उसके अंदर मैंने सितंबर में ही ख़त्म किया था अपना पहला। बट एक्सटेंशन मेरे को लेना पड़ा था बिकॉज अक्टूबर में चला गया था, क्योंकि मैं बीच में काम नहीं करता था उनकी। तो दिस हैपन्स बिकॉज लाइक कई बार क्या होता है, लाइक मेरे साथ क्या था, 4 महीने का अगर कोडिंग पीरियड है 3 to 4 मंथ्स का, तो एक्चुअल जो कोडिंग जो तुम करते हो वो इट्स लाइक मेरे साथ तो एट मैक्स इट वाज 1.5 मंथ्स, ठीक है। बिकॉज अब इसके अंदर तुमको ऐसे भी शेड्यूल करना होता है कि लेट्स से तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है अगस्त में, लेट्स से, ठीक है। तो तुम ऐसे शेड्यूल करो कि तुम्हारा मोस्ट ऑफ द वर्क है वो तुम्हारा अगस्त से पहले हो जाए, ठीक है, ताकि तुमको एंड में कुछ जाके दिक्कत ना हो कि तुम्हारा कॉलेज भी साइड बाय साइड चल रहा है एंड देन तुम साथ में बहुत सारा कोड भी कर रहे हो, तो मैनेजमेंट में तुमको प्रॉब्लम है। तो मेक द टाइमलाइन एज सच कि जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हो जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेजेस इसी टाइम पे स्टार्ट होते हैं जब सेकंड माइलस्टोन तुम्हारा शुरू होता है, तब शायद कॉलेज तुम्हारे स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे शेड्यूल करो कि जो इम्पोर्टेंट बड़ा वाला जो पार्ट है प्रोजेक्ट का वो तो माइलस्टोन 1 में कर लो। लाइक मेरे केस में क्या था, लाइक आई यूज्ड टू वर्क 12 आवर्स अ डे स्टार्टिंग में, जब मैंने माइलस्टोन 1 अपना कर रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मेरा काम था वो मतलब मैंने माइलस्टोन 1 में शिफ्ट कर रखा था, और इट वाज लाइक जुलाई के एंड में ख़त्म हो रहा था और जून से स्टार्ट होता है। तो उसमें भी मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था, जो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था साइड बाय साइड GSOC से पहले, तो बिकॉज आई वॉज लीडिंग दैट प्रोजेक्ट, तो अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। तो मेरा GSOC पीरियड स्टार्ट हो गया और मैं वो साइड बाय साइड प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ और उसको लीड कर रहा हूँ। और बिकॉज जो मेरे टीम के अंडर जो काम कर रहे थे कॉन्ट्रीब्यूटर्स, वो भी GSOC में थे, तो इट्स नॉट लाइक कि अब मैं उनको फोर्स कर सकता हूँ काम करने के लिए, ठीक है। तो फिर अपने को ही काम करना पड़ता है ज़्यादा उस केस में, ठीक है। तो वो भी सिनेरियोज आते हैं, उसके वो भी तुमको कंसिडरेशन में लेना पड़ता है जब तुम अपना टाइमलाइन चार्ट बनाते हो पूरा, अगर तुम मतलब प्रीवियसली कुछ कर रहे हो तो लेट्स से तुम्हारी एक इंटर्नशिप है, तुमको मान लो इंटर्नशिप भी करनी है समर में, तो उसको भी ऐसे करो कि उस पीरियड ऑफ टाइम में तुम कम फोकस कर रहे हो अपना, और जो बाकी वाला जो पीरियड है उसमें तुम ज़्यादा शिफ्ट कर दो कि उस टाइम पे तुम ज़्यादा काम करोगे। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम अगर तुम दिन में 12 घंटे लग के काम कर रहे हो या दिन में 2 घंटे लग के काम कर रहे हो, तो लेट होगा ऑफकोर्स, और 12 घंटे लग के काम करो तो जल्दी हो जाएगा। अपने ऊपर है, जल्दी काम खत्म करना है तो जल्दी करो। Okay. So, guys, the pre-set of questions जो हम सोच के आए थे कि हम आप सबसे पूछेंगे, और बहुत informative session था। इसके अलावा if anybody has any doubt, we are open to the audience. You have the 3 of them here. Anyone? How do you rank the proposal after, like, considering that I have done like 10 contributions to the project or more even? So how do you rank it? It's holistic in a way. How do you rank it? Okay, so as I said, like when we get proposals, so let's say we got 10 proposals, okay. Out of 10 proposals, we select top 3, okay, top 3 or top 4. How we select on the basis of what they have written, and usually like वो कैसे implement करने वाले हैं चीज़ें, उसके basis पे बहुत सारे proposal reject हो जाते हैं, because some people don't have that edge case. One person is saying like I will use this kind of algorithm and I will implement this one, so this has a upper case. And of course उसके बाद हम there are 3 things we look. One is like what is written in the proposal, how you will implement this project. Second is कितने contributions किए, okay. And if it's a new project, so all depends upon the proposal कि मतलब designs, demo app, demo running application, ठीक है. So these are the 2 things, the 2 main things that we take first in the consideration. So many people will get rejected on this. One person would be having a great proposal and no contributions, so out, okay. Another would be having a great proposal and great contributions in, okay. We select top 3, top 4, it depends how it comes, and then we see, as I said, the other stuff. Now we see, okay, which are the best. We understand in detail, okay, this is like
they are doing great in this part. Okay, the timeline also looks great. He will be able to complete. Okay, and we select totally like top 1, 2, 3. Let's say top 3, and it depends. Like if 3 projects are like of same power in the like proposal theme, then we have to like take top 1, top 2, top 3. But out of 10, only 1 proposal is great, straight away he is on the top rank. Okay, but if 3 people come or 4 people come, they have like totally same kind of stuff. They have like totally great proposal section, what they have written. Now we see rest of the part. Past contributions, if they have attached resume, then resume also. Okay, work experience. Many organizations ask work experience. So these 3 things, like we understand. Okay, he has done 10 internships. He has done nothing. He has done 2 internships. 1, 2, 3. Okay. So as I said, we then like cut short the things. Who is like on the top? But this only happens when all the 3 or 4 people are on the same stage. Then we looked at the extracurricular part of that. So like past contributions, hackathon participation, or CGPA, like all these things. So mention everything. That's why I said whatever your achievements are now, put that as well in proposal. There is no harm. They are not asking, still put. Okay. Maybe you will get an uppercase like वो शायद से तुम्हारे उसकी वजह से तुम्हारे को एक अपर केस मिल जाए उसमें. एक चीज़ मैं इसके साथ में ऐड करना चाहूँगा. सो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, एटलीस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये हुआ था कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स निकलते हैं ना, सो बिकॉज वो कोड बेस पुराना है तो यू कैन सी वो वाला पार्ट. तो अगर तुम PRs रेज करते हो एंड लेट्स से तुमने 5 PRs रेज करी हुई हैं और सेकंड कंट्रीब्यूटर ने भी 5 PRs रेज करी हुई है, तो अगर तुम्हारे जो PRs हैं दैट आर रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट दैट यू आर सेलेक्टिंग, तो तुमको प्रेफरेंस मिलेगी. ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट होता है. टाइमलाइन का भी रहता है थोड़ा सा. टाइमलाइन जरूर देखते हैं, लाइक ये भैया ऑलराउंडर बनना प्रपोजल में बस. मतलब ये भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग ही खराब कर दो कि मुझे हार्ड PR जो PR लाइक लग रही है तो वो डालो. बट ऑफकोर्स जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी होगी उसी के हिसाब से तुम्हारी PR लगेगी. सो इफ़ यू आर लाइक द राइट चॉइस फॉर दैट प्रोजेक्ट, तो ऑटोमेटिकली तुम सिलेक्ट हो जाओगे. तो दैट्स अ जस्ट अ कॉम्पिटिशन. यू विल नॉट नो कि किसने कितने खतरनाक PR मारे हैं. बट तुम्हारा काम है लाइक मेक जेन्युइन PRs अच्छे से. आप रीडमी के चेंजेस मत डाल दें PR में. तो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए ना. Yes. So I guess yeah. A very specific question. So, like, do you have any experience with PSF, Python Software Foundation? So, Yes. पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के क्या है ना, बहुत सारे सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना. वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट उसके अंदर बहुत सारे सब ऑर्गेनाइजेशंस आती है. तो वो उसने क्या किया, जितनी पाइथन प्रोजेक्ट्स है वो उनका क्लब है, तो उसके अंदर भी एक्चुअली हाई चांसेस है. सो व्हाट्स योर एग्जैक्ट क्वेश्चन इन दैट? So yeah, so I wanted to know, like, I'm very confused about choosing an organization. And I think you guys have also worked with Python. You have worked with JavaScript, right? Yes. And you have worked with Python. नो माय वाज एंगुलर, सो मेरा वेब है But पूरा. okay, then I want to work with like Python, but I'm having trouble selecting organization. I got it. So I got your problem. So there are like other organizations which directly deal with Python. Okay. Some organizations have one is this Python Foundation, but the problem with Python Foundation is like it's a collection of sub organizations, and there is a risk like if you start today, that organization will not be included by the end of. Okay, they get deselected or selected on the basis. So I would say keep, but the thing is like in Python Foundation there are a lot of Python projects, so you have a like plus point there. So better is like you choose one organization for now. If you are starting today, on the January basis there are other organizations as well in Python. Okay, like if you will search on the Python on the GSOC website, you will find choose straight organization which is the head organization and which contains Python project. Keep that as first priority. Then second priority, keep as Python Foundation because it has great projects.
Okay, but the only thing is like it all depends upon your skill set and how comfortable you are with those projects. If in Python Foundation you are like, if you choose, if you are like very good with a particular project, then I think just go with it. But it depends upon your luck if that gets selected or not. ओके वो सब ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉब्लम उसकी बस वही है, उसके अंदर सब ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक बार उसमें ये भी चेक कर लो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लगातार रिपीट हो रही है। देर आर लाइक लेट्स से लाइक अ लॉट ऑफ, आई थिंक टेंसरफ्लो आल्सो हैज पाइथन कोड बेस, राइट। अब वो टेंसरफ्लो तुम बोलोगे कि नहीं हो पा रहा है, टेंसरफ्लो हाँ वो ज़्यादा हो गया, बट जैसे हाँ, मेरा भी था scientific ना, library। तो जैसे मेरा जो OPI फाउंडेशन था, तो उनका भी पाइथन का कोड बेस है और उन्होंने 4-5 प्रोजेक्ट्स निकाले थे पाइथन में। तो कई बार क्या होता है कि अगर तुम वैसे ही जा रहे हो ना कि मेरे को सिर्फ कोर पाइथन वाले ही कंपनी टारगेट करनी है, तो और भी कंपनीज होती है जिनका जो बैकएंड लिखा होता है वो पूरा पाइथन में लिखा होता है। तो बैकएंड के जितने भी प्रोजेक्ट्स निकालेंगे वो मोस्टली पाइथन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो तुम उस टाइप से भी टारगेट कर सकते हो कंपनी। एक चीज़ और करना, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब तुम सर्च करते हो ना जीसॉक के पेज पे, तो कभी वो डायरेक्ट वो दिखा देगा पाइथन में, लेकिन वो उनको दिखाता है जो टैग कर रखा है पाइथन। बट कभी कभी क्या हो जाता है ना, वो नई ऑर्गेनाइजेशन और द ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज, कोई नया प्रोजेक्ट निकाल देती है पाइथन में, या उनका एक सब पार्ट पाइथन में होता है, दे हैव अ सब प्रोजेक्ट which is a part of Python. So you will not able to find. I like how I know about many organizations because I understood all the organizations. So I would recommend you कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना और उनका कोड बेस देखना, उनका प्रोजेक्ट का पेज होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन अभी ना प्रोजेक्ट पेज निकालेगी, वेयर ऑल द प्रोजेक्ट्स विल बी लिस्टेड फॉर दिस ईयर और द पास्ट ईयर। सो गो ऑन ईच ऑर्गेनाइजेशन, एज आई सेड वो एक हफ्ता लेगा, लाइक 4-5 दिन लगेंगे। बट अगर तुम्हें जीसॉक में जाना है तो फर्स्ट एनालाइज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस और हर एक के उसमें जाके देखो कि कौन सा पाइथन का प्रोजेक्ट तुम्हें समझ आ रहा है। और कभी कभी अगर अब तुम बोल रहे हो कि एज आई सेड तुम्हें सारे प्रोजेक्ट तो ऐसे लगेंगे कि नहीं हो पाएगा, बट देर आर लाइक सम प्रोजेक्ट जिसका बैक एंड, जैसे जैंगो के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सो गो ऑन पाइथन। अब तुम बोलोगे जैंगो नहीं आता है, मे बी जैंगो आता है, तो जस्ट गो इन जैंगो। अगर मान लो तुम्हें पाइथन आता है, अब तुम्हें जैंगो नहीं आता है, तो उससे भागो मत, ठीक है। वो सीखना पड़ेगा थोड़ा। तो मेरे को भी टाइप से कंपाइलर नहीं आता था, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, तो थोड़ा सा तो हटना पड़ेगा, बट जस्ट गोइंग दैट। इसमें एक बात ये होती है, लाइक जब सर्च करते हो ना ऊपर वो कुछ आइडिया भी दे देते हैं, लाइक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पता है पाइथन से रिलेटेड है, तो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी और इजीली मिल जाती है। मैं उसमें ये बोल, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डेटा साइंस की, हाँ पाइथन कोर है, तो पाइथन कोर है तो वो थोड़ा हेल्प पाइथन मिल में जाती काम है। करो, जरूरी नहीं तुम्हें एआई में काम करना। हाँ। तो अंडरस्टैंड दैट कि मतलब जैसे मोबाइल ऐप सर्च करा, जैसे मतलब मैंने फ्लटर है, मैंने मोबाइल ऐप सर्च कर लिया, मुझे आइडिया लग गया कि इनमें फ्लटर पा सकती है कहीं ना कहीं, तो एक हेल्प हो सकती है। लाइक सर्चिंग में बोल रहा हूँ मैं, सर्चिंग में ऐसे हेल्प कर सकती है। एक्चुअली तुम एक काम करना, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं ना, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में आना, और प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जब हम लोग प्रोजेक्ट डालते हैं तो उसके साथ में टैग्स अटैच करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इन टैग्स के साथ है ये, ठीक है। तो वो देखना है कि पाइथन वाला जो टैग है वो किन प्रोजेक्ट्स के साथ में है और फिर वो किन कंपनीज में था, ठीक है। उससे थोड़ी रिवर्स अगर तुम जाओगे तो उससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी तुमको। जैसे जो मेरा प्रोजेक्ट था उसके अंदर काफ़ी पार्ट, क्योंकि मेरे को बैकएंड लिखना था पूरा गूगल ऐप इंजन का, तो मैंने पाइथन में लिखा है पूरा, ठीक है। बट अगर तुम वैसे देखोगे कि यार एक वेबडी का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर पाइथन क्या होगा, अगर तुम ऊपर से जाओगे तो, ठीक है। तो वैसे ट्रैक करो कि जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर पाइथन कितना यूज़ हुआ है और उसके साथ में कौन कौन से टैग्स थे, ठीक है। अगर मोस्टली पाइथन से रिलेटेड ही टैग है तो तुम देख सकते हो कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में था और फिर वैसे टारगेट कर सकते हो। पाइथन में तो बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मुझे तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि सिलेक्ट कौन सा करना है। पाइथन में दिक्कत ये है कि जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको लैंग्वेज से ज़्यादा आना चाहिए। You need to know algorithms, you need to know more than the language. देखो वो तो I wanted to like contribute to the core Python and things like poetry and fast dictionary and these things, but वो सब शायद आते नहीं हैं। देखो पाइथन के सब ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक लाइब्रेरी के भी प्रोजेक्ट हैं, तो फिर तो वही कोर हो गया कि तुम्हें उधर लाइब्रेरी बनानी है। देखो थोड़ा सा तो ऊपर होगा ही हर पाइथन के उसमें,
तो उतना तो करना ही पड़ेगा. लाइक देयर वुड बी सम न्यू पार्ट दैट यू हैव टू लर्न. तुम्हें सीधा कोड तो कहीं नहीं मिलेगा, मतलब जो नॉर्मल पाइथन करते हो. सो बट अगर तुम्हें अब कोड ज़्यादा मैच करते हैं लाइब्रेरीज से, सो पाइथन की फाउंडेशन और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लाइब्रेरीज है. एक और भी है OSWAP, दैट इज़ लाइक सिक्योरिटी की है, उसके अंदर भी पाइथन यूज़ करते हैं वो. तो सिक्योरिटी के सेक्शन में चले जाओ पाइथन में. यू हैव टू बिल्ड पाइथन कोड फॉर लाइक पेन टेस्टिंग एंड ऑल दैट पार्ट. तो साइबर सिक्योरिटी भी सीख लोगे और ये भी. और थोड़ा नई कुछ सीखना चीज़ पड़ेगा. नई चीज़ सीखने से मत डरो. इट्स नॉट लाइक कि हाँ. तुमको पाइथन आता है तो मेरे को तो बस पाइथन वही की करना कंपनी है. चाहिए. लाइक जो मेरा था तो मेरे को जावास्क्रिप्ट रिएक्ट आती थी, मेरे को टाइपस्क्रिप्ट जो मेरे को यूज़ करना था नहीं आता था, मेरे को एंगुलर नहीं आता था. मैंने टाइपस्क्रिप्ट एंगुलर पूरा सीखा है हाँ. करने के लिए. इट्स नॉट लाइक कि यू कांट लर्न. और अगर वैसे चलोगे तो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे फिर तुम्हारे हाँ. साथ. और लाइक फिर फायदा भी नहीं है. जिस में मेन फायदा लर्निंग का भी होना चाहिए. So with a little bit of upscaling and a little bit of effort, you can obviously. I need to find what fits for you the best, Yes, exactly. right? Anybody else? Right? So now since और कोई सवाल नहीं है और मेरे भी सवाल खत्म ही हो गए, बहुत कुछ सीख लिया आज, है ना? थैंक यू. तो जी सब निकाल दो इसका मतलब. अरे अरे यहाँ से किसी का निकलेगा तो बताना यार. definitely है ना? In fact we have a GSOC mentor sitting in front of us. हाँ Yeah, पता है, वो हाँ, तो पता है, है बात ना? हुई. Right. So thank you Mohit, Nishant, Pankaj, thank you very much for coming out. बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Right, and I'm sure everybody learned a lot today. So can we right? So before we disperse, this event was organized by AGS and its volunteers, right? So if anybody is interested in becoming a volunteer, there are two ways to do it. Primarily is you can just fill out the form that we roll out at regular intervals for volunteers, or you can just contact an English volunteer, right? So yeah. Or you could just stay till the end and talk to Or if somebody is interested now, so we have multiple volunteers sitting over here, so you can stay back after the discussion. And yeah, we can talk. Right. So thank you everybody. Thank you.